working capital is equal to 4 lakhs, current ratio is equal to 5:1, quick ratio is equal to 1:1. Find out current assets, current liabilities, and closing stock. I repeat the sum once again. Working capital is equal to 4 lakhs, current ratio is equal to 5:1, quick ratio is equal to 1:1. Find out current assets, current liabilities, and closing stock. So can anybody say what do we mean by working capital? What do we mean by working capital? Anybody? মানে স্যার যে জিনিসটার উপরে মানে এটা প্রজেক্টটা হচ্ছে বা কোনো মানে ক্যাপিটাল মানে তো কোনো একটা জায়গার উপর ইনভেস্ট করছে সেটাই ক্যাপিটাল। হ্যাঁ, এবার যে মানে কারেন্ট যেটা মানে যেটা উপর ইউজ করছে সেটাই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ना वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, हिंदी से बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए जो पैसा होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। अगर कोई एसेट खरीदता है, सोच लो कोई मशीनरी खरीद लिया, वो वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा। मगर डे टू डे एक्टिविटी मतलब सैलरीज देना, वेजेस देना, रॉ मटेरियल्स खरीदना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, फोन का खर्चा देना, डीजल पेट्रोल अगर लगता है तो वो सबका, स्टेशनरीज का खर्चा, मतलब डेली डे टू डे एक्टिविटीज चलाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? हेलो, am I clear to everybody? Okay, then working capital is 4 lakh. As per the sum, working capital दिया गया 4 लाख, 4 लाख रुपया लगता है वर्किंग कैपिटल। अब करंट रेशियो 5:1, क्विक रेशियो 1:1, find out current assets, current liabilities, and closing stock. तो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज निकाल रहा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 5:1। तो न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 1 इज इक्वल टू 5:1। तो इसलिए 5 लिखा गया है, डिनोमिनेटर का 1 नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो लेट एज्यूम कर रहा है करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू ₹X, then current assets will be 5x. Is it clear? We assume that current liability is ₹X. हमको current liability निकालना है, current assets निकालना है, closing stock निकालना है। तो assume कर रहा है क्या? Current liability is equal to ₹X. Then current assets will be 5x, because in the question it is given that the current asset is 5 times that of current liabilities. It is in the question it is given that the ratio is 5:1. That means the current asset is 5 times that of current liabilities. Now current as per the formula of current ratio, current assets minus current liability is equal to working capital. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है ना? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है ना? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, और यू कैन से वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। Then as we earlier assumed that current assets, current liabilities is x and current assets will be 5x, then 5x minus 4x is equal to 4 lakh, or x is equal to ₹1 lakh. That is, current liability is equal to 1 lakh and current assets will be 5 lakh. Is it clear? Up to this, is it clear how we get current asset, current liability of 1 lakh and current assets of 5 lakhs? Is it clear? हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलो के बोलছো मदर टंग। স্যার আমার এই ব্যালেন্স শিট, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট আর ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের যে কলামগুলো বানাতে হয় সেটা আরো একটু বলে দেবেন? কলমগুলো বানাতে হয় মানে আমি ঠিক বুঝলাম না তুমি কি কোশ্চেনটা করতে চাইছো। মানে এই যে বক্স করে যে লিখতে হয় না লেফট সাইডে রাইট সাইডে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আজকের ক্লাসের লাস্টে বলে দেবো। ঠিক আছে, এখন ক্লাসটা নিচ্ছি, লাস্টে আমি তোমাকে বলে দেবো, তুমি লাস্টে দেখো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তোমার নাম কি? ইওর নেম প্লিজ। হ্যাঁ, ওঙ্কার। আচ্ছা ওকে, তো লাস্টের ক্লাসের লাস্টে বলে দেবো। আর যদি কারো কোনো কোয়ারিজ থাকে, ইফ এনিবডি হ্যাভিং এনি কোয়ারিজ প্লিজ আস্ক মি এট দ্য লাস্ট অফ দিস ক্লাস। ওকে, then is it clear up to this? Is it clear to everybody? Yes, is it sir. clear? Okay, then closing stock, quick ratio. So quick ratio is equal to current assets minus CA means current assets,
current assets minus closing stock divided by current liabilities. Current assets minus closing stock divided by current liabilities. So we have already find out that current assets is equal to 5 lakhs and current liability is 1 lakh. So and this quick ratio is equal to 1. So by cross multiplication, we can find out closing stock is equal to rupees 4 lakh. So by cross multiplication, we can get closing stock is equal to 4 lakh. I repeat this sum once again because this type of sums are given in the exam. इस type का problem आप लोगों को exam में मिलेगा. इस type का problem आप लोगों को exam में मिलता है. सेकंड একবার বলো हाँ আবার পুরোটা বলে দিচ্ছি. इस type का sum आप लोगों को exam में आता है. ठीक है ना? इस variety का sum exam में आता है. I repeat the whole sum once again. From the question is working capital is equal to rupees 4 lakhs. Current ratio is equal to 5:1. Quick ratio is equal to 1:1. Find out current assets, current liabilities, and closing stock. Current ratio is equal to current assets by current liabilities is equal to 5/1. Here means current asset is 5 and current liability is 1. That is, the current asset is 5 times that of current liabilities. That is, the current asset is 5 times that of current liabilities. Let current liability be is equal to rupees X. So current liability कितना है? हम assume कर रहे हैं rupees X. Then current asset will be 5x because the ratio is equal to the ratio of current ratio is 5:1. Now current assets minus current liabilities is equal to working capital. That is nothing but the formula of working capital. Working capital is equal to current assets minus current liabilities. Now we put the figures of current assets and current liabilities in the formula. Current assets is equal to 5. Current asset is 5x minus current liability is equal to x is equal to rupees 4 lakh. Then x is equal to 1 is equal to rupees 1 lakh. Therefore, current liability is equal to 1 lakh and current assets is 5 lakh. 1 lakh into 5 is equal to 5 lakh. Now we come to the second part of this sum to find out the closing stock. Quick ratio, the formula of quick ratio is current assets minus closing stock divided by current liabilities. Current ratio is equal to current assets minus closing stock divided by current liabilities. Quick ratio is equal to current assets minus closing stock divided by current liability. Is equal to current assets कितना है? 5 lakhs. 5 lakhs minus closing stock. We have to find out closing stock. Whole divided by 1 lakh is equal to 1. Now 5 lakh minus closing stock whole divided denominator में 1 lakh is equal to 1. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 5 lakh minus closing stock is equal to 1 lakh. Then closing stock will be 5 lakh minus 1 lakh is equal to rupees 4 lakh. Is it clear? কুইক রেশিও এখানে 1:1 বলা আছে এটা দেখি হ্যাঁ কুইক রেশিও এখানে 1:1 বলা আছে. Quick ratio in the sum it is given as 1:1. Quick ratio is 1:1. Okay? Is it clear? Yes or no? Is it clear? Please go through this sum once again. आप लोग एक बार इस सम को चेक कीजिएगा. अभी चेक कीजिए. मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं. किसी का अगर कोई डाउट्स और क्वेरीज रहेंगे तो पूछिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट सम में मूव करूंगा. ये सम इस टाइप का सम आता है एग्जाम में. फिगर चेंज कर कर आता है, कुछ नहीं, सिर्फ फिगर चेंज कर देगा. इस वैरायटी का सम बहुत बार आ चुका है, सिर्फ फिगर चेंज कर कर देता है. স্যার ক্লোজিং স্টকটা একবার একটু বুঝিয়ে দেবেন স্যার? ओके. क्लोजिंग स्टॉक क्विक रेशियो. क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. As the quick ratio is given in the sum is 1:1. That means current asset minus closing stock is equal to 1 and current liability is 1.
we have already find out the amount of current assets and current liabilities. We put the figures of current assets and current liabilities in the formula. The current asset is 5 lakh and the current liability is 1 lakh. Therefore, 5 lakh minus closing stock whole divided by 1 lakh is equal to 1. If you cross multiply it, then it will be 5 lakh minus closing stock is equal to 1 lakh. Is it clear up to? इतना दूर तक clear है ना? Yes, sir. Yes, sir. 5 lakh minus closing stock is equal to 1 lakh. Then if we move closing stock in the right hand side, it will be 5 and we'll move 1 lakh in the left hand side. Then 5 lakh minus 1 lakh is equal to closing stock. That is closing stock is equal to 4 lakh. Is it clear? Or Yes, sir. is it clear? कुछ नहीं negative Yes, side को. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Okay. Is it clear to everybody? Okay. Now I move to sum number 3. If anybody having any queries regarding sum number 1, किसी का कोई sum number 1 regarding कोई queries था क्या? अच्छा लास्ट में लेंगे. कोई queries है sum number 1 के बारे में? मैं पूछना भूल गया था. लास्ट क्लास का जो sum number 1 कराए थे, क्लास में डिस्कस करे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम था क्या किसी को? देखे थे घर में आप लोग ना? ओ आप लोगों को तो बोलना ही भूल गया. सबको हैप्पी न्यू ईयर. हाँ, सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर. Happy New Year, sir. थैंक यू. हैप्पी न्यू ईयर सर. थैंक यू, भूल गया. सॉरी. सम एक नंबर देखे थे? नहीं देखे थे. हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे थे आप लोग. चलिए सम नंबर 3 में चलते हैं. प्लीज एक बार देखिएगा क्योंकि मे बी टुडेज क्लास इज द लास्ट क्लास. ठीक है, चलिए इस सम में क्या दिया गया? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹5 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख. जीपी रेशियो इज इक्वल टू, माने जीपी हियर मींस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. जीपी रेशियो मींस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख बोल रहा है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 20%. देन एनीबॉडी कैन से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%. मतलब सेल करेंगे जितना उसका 20% मेरा प्रॉफिट है. ग्रॉस प्रॉफिट उसका सेल का 20% है. सो दैट इज 20% इज इक्वल टू 5 लाख. देन 100% विल बी 25 लाख. मतलब सम देखकर ही पता चल जा रहा है. क्या बोला क्वेश्चन? ग्रॉस प्रॉफिट ₹5 लाख. जीपी रेशियो इज इक्वल टू 20%. मतलब 20% ऑन होम, 20% ऑन सेल्स. मगर जितना सेल कर रहा हूं उसका 20% मेरा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है. मतलब 100 रुपया का सेल करूंगा तो 20 रुपीज मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है. तो अब 20% ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 20% इज इक्वल टू 5 लाख. देन 100% विल बी 25 लाख. Then we move to the next part. Stock turnover ratio 3 months. Stock turnover ratio 3 months. What does it mean? Stock turnover ratio is 3 months. What does it mean? Anybody? Stock turnover ratio है 3 month का. मतलब क्या होता है? Anybody? कोई बोल सकता है क्या? आप लोगों में से स्टॉक टर्नओवर रेशियो 3 मंथ्स का मतलब क्या होता है? मतलब होता है अगर मैं रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्शन में देता हूं जिस दिन से, उससे 3 मंथ्स का बाद, 3 मंथ बाद वो स्टॉक सेल कर मेरा घर में पैसा आता है. स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट होता है आफ्टर 3 मंथ. स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट होता है आफ्टर 3 मंथ. स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 3 मंथ. डेटा टर्नओवर रेशियो मतलब जिस दिन से मैं क्रेडिट सेल करूंगा उसका 3 महीना बाद मेरे को पैसा मिलेगा. डेटर्स टर्नओवर रेशियो मतलब जिस दिन मैं क्रेडिट सेल करूंगा, अगर 1 जनवरी को मैं क्रेडिट सेल कर रहा हूं तो 31 मार्च को मेरे को घर में पैसा आएगा. अगर ₹100 मैं क्रेडिट सेल करता हूं 1 जनवरी को, मेरे को 31 मार्च मेरे को घर में पैसा आएगा. 100 रुपया 31 मार्च को आएगा. अगर 1 जनवरी को मैं 100 रुपीज का क्रेडिट सेल कर रहा हूं तो 31 मार्च को मेरे घर में पैसा आएगा, ₹100 आएगा. Then comes creditors turnover ratio is 3 months. Debtors turnover ratio and creditors turnover ratio here is 3 months. मतलब क्या हुआ? उधारी में मैं जब माल खरीदता हूँ, जनरली अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो मैं रॉ मटेरियल ही उधारी में खरीदूंगा. अगर रॉ मटेरियल में उधारी में खरीदता हूं, अगर 1 जनवरी को मैं रॉ मटेरियल क्रेडिट में खरीदता हूं तो मैं 31 मार्च को जाकर उन लोगों को पैसा पे करता हूं. क्रेडिटर्स टर्नओवर में रेशियो मींस
अगर मैं 1 जनवरी को 200 रुपया का क्रेडिट में कोई सामान खरीदा तो 31 मार्च ऑफ दैट ईयर मैं उस पैसा को रिपे करूंगा। यार बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर आर 3 मंथ। Is it clear to all of you what is the meaning of stock turnover ratio, debtors turnover ratio and creditors turnover ratio? Please yes or no में आंसर दीजिएगा। স্যার বলছি স্টক আর ডেটাসটা একবার বলবেন, ঠিক বুঝলাম না। आबार निश्चय कोनो प्रॉब्लम नहीं। स्टॉक टर्नओवर का रेशियो मतलब क्या होता है, जो स्टॉक रॉ मटेरियल क्या होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैं क्या करता हूँ, स्टॉक को क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, फिर वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेस में वो जाकर क्या होता है, फिनिश गुड्स बनता है। क्या बोला मैं, फिनिश गुड्स बनता है। अब फिनिश गुड्स को मैं क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। तो जो स्टॉक को जो टर्नओवर है सेल्स का वो 3 मंथ्स लगता है। डेटर्स टर्नओवर मतलब अगर मैं क्रेडिट में किसी को सेल करता हूँ, उधारी में सेल करता हूँ, किसको क्या बोला, डेटर्स मतलब किसी को उधारी में सेल करता हूँ, क्रेडिट सेल करता हूँ, फिनिश गुड्स को मैं सेल करूंगा, अपना फिनिश गुड्स को मैं सेल करूंगा। तो अगर फिनिश गुड्स को मैं जब सेल करूंगा, आप अगर सोच लीजिए, अज्यूम कीजिएगा 1 जनवरी को मैं किसी को 100 रुपया का सामान बेचा हूं, क्रेडिट में बेचा हूं, तो वो मेरे को 31 मार्च को पैसा वापस करेगा। उसका 100 रुपया मेरे को 31 मार्च वापस देगा। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो मतलब मैं किसी के पास से 100 रुपया का रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक ऑपोजिट टू डेटर्स टर्नओवर। मैं इधर डेटर्स में क्या कर रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, क्रेडिटर्स में क्या कर रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं, डेटर्स में सेल कर रहा हूं, क्रेडिट सेल कर रहा हूं, क्रेडिटर्स में मैं क्रेडिट परचेज कर रहा हूं, डेटर्स में क्या कर रहा हूं, क्रेडिट सेल कर रहा हूं, क्रेडिटर्स में क्या कर रहा हूं, क्रेडिट परचेज कर रहा हूं। मैं एज्यूम कीजिएगा 1 जनवरी को मैं क्रेडिट परचेज किया हूं 50 रुपीज का, 1 जनवरी को मैं क्रेडिट परचेज किया हूं 50 रुपीज का, मेरे को उसको पैसा वापस करना है 31 मार्च को। इज इट क्लियर? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। তার মানে স্টকটা তাহলে মানে পারচেজই হচ্ছে, তাই তো? স্টকটা মানে হচ্ছে যেদিনকে স্টক তুমি কিনেছো, खरीद लिए, मगर जिस दिन मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में दे रहा हूं, सोच लीजिए स्टॉक में खरीद लिया, अब कैसे खरीदा उसको आपको देखना नहीं है। स्टॉक क्रेडिट में खरीदा ना कैश में खरीदा उसको देखना नहीं है आपको। स्टॉक आज खरीद लिया, आज कितना तारीख है, 3 जनवरी, 3 जनवरी में उसको मशीन में दिया, प्रोडक्शन प्रोसेस में दिया। अब वो फिनिश गुड्स बनेगा, रॉ मटेरियल था, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, चलेगा, फिर क्या होगा, फिनिश गुड्स होगा। फिनिश गुड्स होने के बाद उसको 3 महीना लगता है सेल करने में। फिनिश गुड्स होगा तभी सेल नहीं होगा ना, फिनिश गुड्स होने के बाद सेल होता है, तो 3 मंथ्स टाइम लग जाता है। हर फिनिश गुड्स उस टाइम सेलेबल नहीं होता है ना, मार्केट में डिमांड रहेगा, उस बेसिस में सेल होगा ना, तो 3 मंथ लग जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। नहीं तो और एक बार बोलेंगे, मतलब जिस दिन से मैं रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में देता हूं, मशीनरीज में देता हूं, उससे 3 महीने लग जाता है उसको सेल होने में। जिस दिन से दिया, फिर फिनिश गुड रॉ मटेरियल्स को वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता था, वो जाएगा, फिर फिनिश गुड्स बनेगा, फिर सेल होगा। हर टाइम तो फिनिश गुड्स हर टाइम ही सेल नहीं होगा ना, हो गया तो सेल हो जाता है क्या, स्टॉक में भी कुछ दिन पड़ा रहता है, फिर सेल होता है। फिर आता है डेटर्स, अगर कैश होता तो कैश सेल्स करेंगे तो पैसा घर में आ जाएगा, क्रेडिट सेल होगा तो 3 महीने बाद पैसा आएगा। लिटरली मेरे को अगर क्रेडिट सेल होगा तो 6 महीने बाद मेरे को पैसा मिलेगा। इधर रॉ मटेरियल्स खरीदने के बाद 6 महीने बाद मेरे को पैसा आएगा अगर क्रेडिट सेल होगा तो, क्योंकि 3 महीने तो स्टॉक टर्नओवर के लिए लग जाएगा और 3 महीने तो डेटर्स के लिए लग जाएगा। 3 + 3 मंथ्स इक्वल टू 6 मंथ्स लग जाएगा मेरे लिटरली। इज इट क्लियर? एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर इज 3 मंथ्स, तो मेरे को 3 महीने का वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज आ सकता है 3 मंथ्स का। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्लियर है, हो गया ना? हेलो यस सर। यस सर, यस सर। डेटर्स टर्नओवर एंड क्रेडिटर्स से तीनों होगा ना, स्टॉक टर्नओवर। यस सर। अगर ये सब का आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगा ना, तो जब सम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब का मीनिंग बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? स्टॉक टर्नओवर रेशियो 3 मंथ्स, डेटर्स टर्नओवर मतलब क्या बोलता है सर डेटर्स विद सर, ओहो किसको बोल रहे हैं डेटर्स, मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो? मतलब डेटर्स का मतलब पहले सुनिए, फिर मैं टर्नओवर में जाऊंगा। डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को पास से बिजनेस को पैसा मिलेगा, যাদের কাছ থেকে তুমি বিজনেস পয়সা পাবে। তোমার দোকান আছে ধরে নাও, তোমার নাম কি, ইওর নেম প্লিজ? অনির্বাণ ভট্টাচার্য। অনির্বাণ ভট্টাচার্য।
सुनिए अनिर्बाण भट्टाचार्य हिंदी में বলছি একটু হ্যাঁ কারণ অনেক স্টুডেন্ট হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, নো প্রবলেম। তো তোমার মনে করো না তোমার একটা ধরো গ্রসারির দোকান আছে, ঠিক আছে, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है ना, ग्रोसरी छोटा मोटा दुकान बोला तो प्लीज डोंट माइंड। तो ग्रोसरी का दुकान है, मैं आया उधर 5 किलो चाल खरीद के लेके चला गया। सोच लीजिए 5 किलो का चाल का दाम है 500 रुपया, एज्यूम कीजिएगा। अब मैं 5 जनवरी को खरीदा था 5 किलो चाल 500 रुपया देकर, अब वो आपको पैसा देंगे 3 मंथ बाद। 1 जनवरी को खरीदा तो 31 मार्च को, नहीं तो 1 अप्रैल को पैसा देंगे। समझ में आया? तो यस सर, जब यस सर। जब क्रेडिट सेल होगा ना, क्रेडिट सेल बोल रहा हूं, क्रेडिट सेल होगा तभी डेटर्स टर्नओवर रेशियो आएगा। यू मे नोट इट डाउन। डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स अराइजेस व्हेन देयर विल बी अ क्रेडिट सेल। यू मे नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन एवरीबॉडी। স্যার একবার এই দুটোই লিখে দিন তাহলে ভালো হয়, হ্যাঁ স্টক ভালো, ডেটাস আবার বলছি। দুটোই। अच्छा, डेटर्स बोलिए, क्रेडिटर्स बोलिए, नियर स्टॉक बोलছে। Debtors will arise, debtors will arise, debtors will arise, arise, arise when there will be a credit sale. Debtors will arise when there will be a credit sales. क्रेडिट सेल्स मतलब बांग्ला लिखते पारो धारे, जिन लोगों का मदर टंग हिंदी है उसमें क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, और बंगाली में धार। क्रेडिट का बंगाली मीनिंग है धार और हिंदी मीनिंग है उधारी। वाह, लिखे जो लिखना हो गया सबका? डेटर्स का मतलब बोला, टर्नओवर रेशियो का नहीं बोला, डेटर्स का सिर्फ मतलब बोला। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो मतलब जिस दिन से क्रेडिट सेल कर रहा हूं उसका कितना दिन बाद मेरे को घर में पैसा आएगा, मतलब 3 मंथ्स इधर बाद पैसा आएगा मेरे को। कैन आई मूव टू क्रेडिटर्स? सबका लिखना हो गया? प्लीज यस और नो। यस सर। ओके, क्रेडिटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सिर्फ लिखिएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स विल अराइज व्हेन देयर विल बी अ क्रेडिट परचेज। Creditors will arise, creditors will arise when there will be a credit purchase। ऊपर में क्रेडिट सेल्स को अंडरलाइन कीजिएगा, इधर क्रेडिट परचेज को अंडरलाइन कीजिएगा। ऊपर में क्रेडिट सेल्स को अंडरलाइन कीजिएगा, उसके बाद नीचे नेक्स्ट सेंटेंस में क्रेडिट परचेज को अंडरलाइन कीजिएगा। Creditors will arise when there will be a credit sales, sorry, credit purchase। Creditors will arise when there will be a credit purchase। Creditors will arise when there will be a credit purchase। Is it clear? Is it clear? हो गया लिखना? यस सर। Okay. Stock turnover means stock turnover means the time taken, stock turnover means the time taken to convert raw materials, time taken to convert raw materials into finished goods, time taken to convert raw materials into finished goods and then sell. Raw materials into finished goods and then sell. Time taken to convert raw materials into finished goods and then sell.
Is it clear? মানে মেটেরিয়াল তৈরি হবে দেন বিক্রি হবে। বিক্রির কন্ডিশনে আছে, বিক্রি হবে মানে বিক্রি, ধরো বিক্রি করলে এবার ক্রেডিট কি ক্যাশ সেলস হলো সেটা পরে হবে। অনেক সময় কি হয় না, ফিনিশ গুডস গোডাউনে পড়ে থাকে, তখন হবে না। গোডাউন থেকে যে সেল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ওটা টার্ন, ওই দিন অবধি ওটাকে টার্ন ওভার ধরবে। বোঝা গেছে? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। Then creditors turnover is 3 months. Full stop. Comma. Closing stock is more than opening stock by rupees 15,000. और क्या बोला? जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 15,000 रुपया से ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन 15,000 that of opening stock. मतलब क्लोजिंग स्टॉक is more than opening stock by rupees 15,000. क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो ओपनिंग स्टॉक का साथ और 15,000 ऐड करेंगे तो हमको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यू है उसका साथ अगर मैं 15,000 ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा, ओपनिंग स्टॉक मेरा 10,000 रुपीज है तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी रुपीज 25,000। तो क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, रादर वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 15,000। इज इट क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन, और इजी लैंग्वेज में बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 15,000। इस सेंटेंस को अगर, इस पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस को मैं अगर और इजी लैंग्वेज में बोलूंगा तो द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 15,000। इज इट क्लियर? Yes or no? Yes, Closing sir. stock is more than opening stock by rupees 15,000। इस सेंटेंस को अगर लूसिड लैंग्वेज में बोलूंगा, नहीं तो इजी लैंग्वेज में बोलूंगा, तो डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 15,000। इज इट क्लियर? फुल स्टॉप। Yes. ओके, थैंक यू। फुल स्टॉप। फाइंड सेल्स, डेटर्स, क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक एंड क्रेडिटर्स। क्या क्या निकालना पड़ेगा? सबसे सेल्स निकालना पड़ेगा, डेटर्स निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक एंड क्रेडिटर्स। ये 3 4 5 6 सॉरी 6 चीज, 3 2 5 चीजों को हमको निकालना पड़ेगा। सेल्स, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्रेडिटर्स। सेल्स तो इजीली निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। तो 20 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट सम में दिया गया है 5 लाख इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो अगर नेट सेल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20 नेट सेल्स इज इक्वल टू 5 लाख इनटू 100। देन अगर नेट सेल्स इज इक्वल टू 5 लाख इनटू 100 डिवाइडेड बाय 20, वी विल गेट रुपीज, नेट सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 25 लाख। और इजीएस्ट वे से कर सकते हैं, 20% इज इक्वल टू 5 लाख, देन 100% विल बी, कर लेंगे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। 20% इज इक्वल टू 5 लाख, 1% is equal to 5 lakhs by 20, then 100% will be 5 lakh by 20 into 100. Is it clear? Net sales will be 25 lakhs. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now we move to the next part. Debtors. Debtors का कैसे निकालता है? वो जो debtors turnover ratio क्या है? Credit sales into credit, debtors is equal to credit sales into credit period divided by 12। ये हम लोग मंथ्स में निकल रहा है क्योंकि क्वेश्चन हमको मंथ्स में दिया गया है। 3 मंथ्स है। डेटर्स टर्नओवर कितना है? 3 मंथ्स है, तो इसलिए हम मंथ का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डेटर्स टर्नओवर कितना है? 3 मंथ, इसलिए हम लोग मंथ का फॉर्मूला यूज कर रहा है। तो क्या है? डेटर्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो क्रेडिट सेल कितना है? इधर एक तो एजम्पशन है, ये जो टोटल सेल्स ना, ये लोग क्रेडिट सेल्स पकड़ लिया। ये जो टोटल सेल्स है ना,
25 lakhs, ये जो टोटल सेल्स है 25 lakhs, इसको हम लोग क्रेडिट सेल्स पकड़ रहा है। ये जो टोटल सेल्स है ना, ये जो 25 lakhs है, सेल्स का अंदर दो पार्ट रहता है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। ये लोग एज्यूम कर रहा है कि ये टोटल सेल्स भी मेरा क्रेडिट सेल्स है। इधर ये लोग एज्यूम कर रहा है कि ये टोटल जो सेल्स है, सेल्स का दो पार्ट होता है, एक कैश सेल्स होता है, एक तो क्रेडिट सेल्स होता है। मतलब कैश में सामान बेचा और एक उधारी में सामान बेचा, यही तो सेल्स का दो पार्ट होगा। तो ये जो 25 lakhs है, ये लोग एज्यूम कर रहा है कि ये पूरा ही क्रेडिट सेल है, मतलब मैं उधारी में सामान बेचा हूं 25 लाख। तो डेटर्स अगर क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि कैश सेल्स इतना है, तो आपको कैश सेल्स को डिडक्ट करना पड़ेगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए हम लोग सिर्फ क्रेडिट सेल्स को ही लेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं, फॉर कंप्यूटिंग डेटर्स टर्नओवर रेशियो, फॉर कंप्यूटिंग डेटर्स फ्रॉम डेटर्स टर्नओवर रेशियो, फॉर कंप्यूटिंग डेटर्स from debtors turnover ratio, we will take only credit sales. Please note it down. For computing debtors from debtors turnover ratio, we will take only credit sales. I repeat the sentence once again. For computing debtors from debtors turnover ratio, we will take only credit sales. For computing debtors from debtors turnover ratio, we will take only credit sales. Is it clear? तो इस क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये हम लोग टोटल सेल्स ही क्रेडिट सेल्स ले लिए हैं। तो क्रेडिट सेल्स 25 लाख क्रेडिट कितना है बोलिए प्लीज। স্যার তারপরে স্যার ক্যাশ সেলস দিলে ওটা তো আমরা নেট সেল থেকে মাইনাস করে তো আমরা ক্রেডিট সেলটা ধরতে হবে। क्रेडिट सेल्स, यस यस यू आर राइट, वेरी गुड, ওকে वेरी गुड। तो अगर क्वेश्चन टोटल सेल्स और कैश सेल्स का फिगर देता है, तो हमको क्रेडिट सेल्स ही लेना है। तो टोटल सेल्स से कैश सेल्स को लेस करेंगे तो मेरे को क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं टोटल क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। लिख लीजिएगा प्लीज, टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल सॉरी क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू total sales minus cash sales. Credit sales is equal to total sales minus cash sales. उसका बाद और एक लाइन लिख लीजिएगा, if the question is silent, if the question is silent regarding the nature of sales, if the question is silent regarding the nature of sales, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज नेचर ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ सेल्स दैट इज वेदर इट इज कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, दैट इज वेदर इट इज कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कॉमा वी कैन एज्यूम बा वी मस्ट एज्यूम कीजिएगा, कैन काटिए मस्ट कीजिए, वी मस्ट एज्यूम द टोटल सेल्स as credit sales. I repeat the sentence once again. If the question is silent regarding the nature of sales, bracket mein, that is whether cash sales or credit sales, bracket close, we must assume, we must, can mat likhiyega, we must kar dijiyega, we must assume the enter sales as credit sales, full stop. लिख लिए, रिपीट कीजिए एक बार। अच्छा, if the question is silent regarding the nature of sales, if the question is silent regarding the nature of sales, bracket में, that is whether cash sales or credit sales, bracket close, we must assume the total sales as credit sales. We must assume the total sales as credit sales. Full stop. I repeat the sentence once again. If the question is silent regarding the nature of sales, bracket that is whether cash sales or credit sales, we bracket close, we must assume the enter sales as credit sales. Is it clear?
यस सर। तो टोटल सेल्स को हम लोग क्रेडिट सेल्स पकड़ रहा है, 25 लाख क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट पीरियड क्वेश्चन में दिया गया है डेटर्स का 3 महीना 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12, तो डेटर्स कितना आ जाएगा 6,25,000। 25 लाख डिवाइडेड बाय 12 into 3, that will be 6,25,000। तो डेटर्स कितना है 6,25,000। डेटर्स कितना है 6,25,000। इतना दूर तक सबको क्लियर है? प्लीज एक बार देख लीजिएगा, उसका बाद में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में आऊंगा। तो क्वेश्चन शॉर्टकट क्या, अगर क्वेश्चन डेटर्स निकालने देता है तो हमको डेटर्स टर्नओवर भी रेशियो दिया जाएगा। इज इट क्लियर? अगर क्वेश्चन हमको डेटर्स निकालने के लिए बोलता है तो हम लोगों को डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी दिया जाएगा। तो हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो से ही डेटर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो से निकालेंगे। तो स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, cost, what do you mean by cost of goods sold? Now the question arises, what do you mean by the cost of goods sold? In the previous class मैंने बोल चुका हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है। I discussed the meaning of cost of goods sold. In the last class I have discussed the meaning of cost of goods sold. Can anybody say what do you mean by cost of goods sold? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यस, तो मतलब जिस सामान को मैं बेच रहा हूं उसका खर्चा कितना है, उसका कॉस्ट कितना है। जो सामान को मैं मार्केट में बेच रहा हूं उसका कॉस्ट कितना है। नाम से ही पता चल जा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान में बेच रहा हूं उसका कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान में मार्केट में बेच रहा हूं उसका कॉस्ट क्या है। Cost of goods sold divided by average stock. Cost of goods sold divided by average stock. तो cost of goods sold मतलब क्या होगा, जो सामान मैं बेच रहा हूं उसका दाम कितना है। तो सेल्स कितना है 25 लाख, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 5 लाख, ठीक है। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना था क्वेश्चन में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना था, सॉरी स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना था क्वेश्चन में 3 मंथ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ऑल आर 3 मंथ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना था 3 मंथ। नाउ द स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा और 12/3। तो वेलोसिटी कितना होगा 4 टाइम। वेलोसिटी का मतलब कुछ नहीं, कितने बार साल में स्टॉक घूमता है। मतलब क्या होता है, लूसिड लैंग्वेज में बोलूंगा, इजी लैंग्वेज में बोलूंगा तो मेरे को स्टॉक साल में 4 बार घूमता है। मतलब 4 बार मैं 1 तारीख को स्टॉक लगाया, स्टॉक को मशीनरीज में दिया, रॉ मटेरियल्स को दिया, फिनिश गुड्स होकर सेल हो रहा है कब 31 मार्च। फिर मैं 1 अप्रैल को दूंगा, वो फिनिश गुड्स होकर सेल कब होगा 30 जून को। फिर मैं 1 जुलाई को रॉ मटेरियल दूंगा, वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स होकर सेल कब होगा 30 सितंबर को। फिर मैं रॉ मटेरियल दूंगा और 1 अक्टूबर को, वो सेल होगा कब 31 दिसंबर को। मैं फिर रॉ मटेरियल दूंगा 1 जनवरी को और वो सेल होगा 31 मार्च को, ठीक है ना। तो ऐसा 4 बार साल में घूमेगा रॉ मटेरियल। तो स्टॉक वेलोसिटी मतलब कितना, स्टॉक कितना टाइम्स रोटेट कर रहा है, मतलब साल में 4 बार रोटेट कर रहा है। समझ में आया, मेरे को 4 बार स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ेगा और मशीनरी प्रोडक्शन प्रोसेस में देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज से मी। वेलोसिटी মানে রিপিটেন্স হবে মানে কি বলতে চাইছি, माने इसका मतलब होता है कितने बार साल में स्टॉक घूमता है। मतलब स्टॉक को मैं जब
रॉ मटेरियल्स को देता हूं, कितने बार साल में वो घूमकर फिनिश गुड्स बनता है, सेलेबल फिनिश गुड्स बनता है। 4 बार যদি আমি মানে কি স্টক ভেলোসিটি का मतलब स्टॉक टर्नओवर मतलब 3 मंथ्स है, मतलब स्टॉक साल में कितना 12 मंथ्स है, मतलब स्टॉक फिनिश गुड्स साल में कितने बार बन रहा है। एक स्टॉक को फिनिश गुड्स बनने के लिए कितना टाइम लग रहा है, सेलेबल फिनिश गुड्स बनने के लिए सर 3 months 3 मंथ, तो साल में कितना 12 मंथ, तो स्टॉक साल में कितने बार मेरे को तो रॉ 4 मटेरियल्स को 4 टाइम्स सर। वो तो इसलिए 4 वेलोसिटी होगा 4। ओके सर। 12 डिवाइडेड बाय 3, मतलब मैं स्टॉक लेता हूं 4 बार साल में स्टॉक लेना पड़ेगा और वो फिनिश गुड्स बनकर सेल होता है। अगर स्टॉक वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उस बिजनेस का इनकम प्रॉफिट कम मार्जिन से भी वो लोग बिजनेस कर सकते हैं। मगर अगर साल में 6 बार 12 बार स्टॉक घूमता है तो जितने बार सेल करूंगा अगर 10% में मार्जिन रहेगा तो मेरे को कितना हो गया, 12 बार घूमेगा 120% मार्जिन आ गया। हर साल हर महीने में मेरे को 10% प्रॉफिट घुस रहा है। समझ में आया? हर सेल में मेरे को प्रॉफिट 10% अगर मार्जिन रहेगा तो जितना का वॉल्यूम सेल करूंगा, हर अगर स्टॉक टर्न और स्टॉक वेलोसिटी 1 माने 12 टाइम्स है तो मेरे को 12 बार वो पैसा 10% कर कर आएगा। इज इट क्लियर? कैन आई मूव? यस सर। ओके, स्टॉक वेलोसिटी है 4, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मेरा 5 लाख। अब क्या होगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 lakh divided by average stock is equal to 4. Is it clear? 25 lakhs minus 5 lakhs is equal to 20 lakhs divided by average stock is equal to 4. 4 कैसे आया? 12 divided by 3. 12 divided by 3 is equal to 4 is equal to 20 lakhs divided by average stock. और I can say average stocks को इस साइड लेके जाऊं और 4 को इधर लाऊंगा तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 5 लाख आएगा और एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 5 लाख। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी ना? किसी का Yes, अगर sir. कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। तो एवरेज स्टॉक मेरे को आ गया 5 लाख। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला में देखिएगा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इन द क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला गया है? क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 15,000 रुपया ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 15,000 रुपया से ज्यादा है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को लिख सकते हैं क्या? ओपनिंग स्टॉक तो ऐसा ही बैठा दिया ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को क्या लिखा? ओपनिंग स्टॉक प्लस 15,000। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस 15,000 लिख सकते हैं क्या? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक प्लस 15,000 না কেন এলো? মানে এমনি স্টক তো জানি ওই এভারেজ স্টক মানে ওপেনিং স্টক প্লাস ক্লোজিং এই স্টক যে ডিভাইডেড কোশ্চেন বলে দিয়েছে দেখো, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय ₹15,000। क्लोजिंग स्टॉक ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 15,000, मतलब ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपया से ज्यादा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या? क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग Yes, स्टॉक sir, प्लस yes, sir. 15,000। इज इट क्लियर? इस वही चीज इधर बोला गया है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 15,000। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 15,000। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, देन क्या हो गया? 2 ओपनिंग स्टॉक, मतलब ये 1 ओपनिंग स्टॉक प्लस 2 ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं ना? 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 लाख और ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4,92,500। कैलकुलेटर है आप लोगों का पास? प्लीज चेक इट आउट। यस सर। तो चेक कीजिए। স্যার বলছি দুটো ওপেনিং স্টক কি করে হলো ওটা? আরে আমি ক্লোজিং স্টকটাকে কি লিখলাম? ক্লোজিং স্টক ইজ মোর দ্যান 15,000। 15,000। इधर क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ।
क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 15,000। क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 15,000। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक से 15,000 का ज्यादा है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस 15,000। इज इट क्लियर? মানে ক্লোজিং স্টকের জায়গায় ওটা মানে রিপ্লেস করে দিয়েছে ওপেনিং স্টক প্লাস 15। না 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 না, ভালো করে বোঝো। দেখো, ক্লোজিং স্টক বলেছে যে ওপেনিং স্টক যা ভ্যালু তার থেকে তার সঙ্গে আরো 15,000 যোগ করলে যে ভ্যালুটা সেটা ক্লোজিং স্টক হয়। তাহলে আমি ক্লোজিং স্টকের জায়গায় লিখতে পারি না ওপেনিং স্টক প্লাস 15,000 টাকা, কেননা বলেছে ক্লোজিং স্টক ইজ ইকুয়াল টু ওপেনিং স্টক প্লাস 15,000। তাই তো মানে হচ্ছে ক্লোজিং স্টক ইজ মোর দেন ওপেনিং স্টক বাই 15,000। স্যার, হ্যাঁ, স্যার তার মানে ওপেনিং স্টক যদি এক্স হয় তাহলে ক্লোজিং স্টক হচ্ছে x plus আপনার 15,000, x 15,000। 15,000, হ্যাঁ একদম এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। যদি আমি ওপেনিং স্টককে x ধরি তাহলে ক্লোজিং স্টক উইল বি x plus 15,000, therefore 2x plus 15,000। বোঝা গেছে? যে কোশ্চেন হ্যাঁ, করেছিলে স্যার। বুঝতে পেরেছো তো? x ধরে নাও তাহলে আরো সুবিধা হবে। therefore क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक सॉरी, therefore opening stock but 2x plus 15,000 divided by 2 is equal to 5 lakh। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख, 10 लाख is equal to 2x plus 15,000। ओपनिंग स्टॉक को मैं x पकड़ लिया तो x plus x is equal to 2x, 2x plus 15,000। 2x को इधर लाऊंगा तो 2x is equal to 5 लाख minus 15,000। 5 लाख minus 15,000 करूंगा तो मेरे को आ जाएगा 2x। अब फिर इसको अगर डिवाइड भी करूंगा तो 7,500 लेस होगा, सो आ जाएगा 4,92,500 ओपनिंग स्टॉक। हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक से 15,000 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5,07,500। इज इट क्लियर? यस सर। देन क्रेडिट सबको क्लियर है ना? मैं मूव करूं क्या? इसलिए मैं क्यों 15,000 ऐड किया था, बोला था क्लोजिंग स्टॉक इज मोर द ओपनिंग स्टॉक से 15,000 का ज्यादा है, 15,000 रुपया से ज्यादा है, तो इसलिए मैं 15,000 क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का साथ 15,000 ऐड किया। इज इट क्लियर? यस सर। देन कम्स क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सेम ही है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? क्रेडिट परचेज लेता हूं। क्या लेता हूं? क्रेडिट परचेज। उधारी में कितना खरीदा हूं, क्रेडिट परचेज into credit period divided by 12 लाख, sorry divided by 12। now the question arises, ये credit purchase 20,000 1500 कैसे आया? can anybody बोल सकते हैं credit purchase 20 लाख 15,000 कैसे आया? কোনটা স্যার আরেকবার বলুন। क्रेडिट परचेज कैसे आया? 20 लाख 15,000। anybody? नीच में देखिएगा, परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये नीच में दिया गया है, देखे? परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर किधर से आया?
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का किधर से फिगर आया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड The net sale minus gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे को आ गया था इधर से 20, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 25 माइनस 5, तो 20 लाख 20 लाख, तो किधर से आया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,07,500 माइनस ओपनिंग स्टॉक 4,92,500, it is 15,000, sorry, 20,15,000. Is it clear? Then is 20,15,000. So credit purchase is equal to 20,15,000 into credit period. Credit period भी question में हमको 3 months दिया गया, 3 divided by 12. Therefore, creditors will be 20,50,000 into 3 divided by 12 is equal to into 1 by 4 that will be 5,03,750. 5,03,750. इसको एक बार चेक कीजिएगा, क्रेडिटर्स को कैसे निकाला गया एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। किसी का कोई डाउट है तो बोलिएगा, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, प्लीज चेक कीजिएगा। समझ में आया क्रेडिटर्स कैसे आया? सॉरी परचेस कैसे आया? सॉरी क्रेडिटर्स, हाँ या ना? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए मेरे को, मैं फिर एक बार बोल दूंगा। सर क्रेडिटर्स पार्ट और एक बार बोल दीजिए। ओके, क्रेडिटर्स इज इक्वल टू, क्रेडिटर्स कैसे निकलेंगे? क्रेडिटर्स टर्नओवर फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट परचेज इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 3। तो क्रेडिट पीरियड कितना है? 3 मंथ क्वेश्चन में दिया गया है, तो 3 डिवाइडेड बाय 12। तो क्रेडिट परचेज जो 20,15,000 आया कैसे? हम लोग टोटल परचेज को ही क्रेडिट परचेज पकड़ ले रहा है इस क्वेश्चन में, अज्यूम कर रहे हैं, वी अज्यूम दैट द एंटायर परचेज इज क्रेडिट परचेज। परचेज इज इक्वल टू क्या होता है? ये फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये होता है परचेज। परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हो गया? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 5,07,500। ओपनिंग स्टॉक क्या है? 4,92,500। हो गया? तो मेरा परचेज इज इक्वल टू 20,15,000। Then we put the purchase figure of amount of purchase in the credit purchase. We assume that the entire 20,50,000 is credit purchase. We assume that the entire entire purchase of 20,15,000 is credit purchase. Then as per the formula, credit purchase into 3 by 12, that will creditors will be 5,03,750. Is it clear? यस सर। Clear to everybody? सबको क्लियर है?
प्लीज बोलिएगा हाँ या ना। एक बार पूरा सम को देखना चाहते हैं आप लोग? किसी का अगर क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं प्लीज, नहीं तो मैं नेक्स्ट सम में चला जाऊंगा। इस স্যার time- একবার স্যার একবার একটু উপর থেকে দেখি স্যার। উপর থেকে একবার চেক করে নাও। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই টাইপের একটু সামটা একটু টাফ আছে, কিন্তু এই টাইপের সামও কিন্তু অনেক সময় দিয়ে থেকে দেয় ওরা, এক্সামে আমি দেখেছি। সামটা একটু টাফ, কিন্তু ক্রেডিটার্স ডেটার্স পার্টটা একটু টাফ, কিন্তু এই টাইপেরও সাম দেয় ওরা, হয়তো কম দেয় কিন্তু মাঝে সাঝে আসে। স্যার তবে ক্রেডিটারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্রেডিট পারচেজ নেবো আর ডেটারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্রেডিট সেল নেবো, তাই তো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম নোটে মানে ফর্মুলাটা সেম আছে, মানে ডেটার্স পিরিয়ড, ডেট পিরিয়ড আর ক্রেডিট পিরিয়ড, এই দুটোই চেঞ্জ আছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে। আমি কি আবার फास्ट থেকে मैं पूरा समझा दूं क्या? एक बार मैं पूरा ही एक बार समझा देता हूँ, चलिए आप लोगों का भी सुविधा होगा। मैं फिर एक बार शाम को पढ़ रहा हूँ और फिर पूरा समझा देता हूँ। सब नंबर 3, ग्रॉस प्रॉफिट ₹5 lakhs, जीपी रेशियो 20%, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 3 months, डेटा टर्नओवर रेशियो 3 months, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 3 months, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्लोजिंग स्टॉक is more than opening stock by ₹15,000. Closing stock is more than opening stock, is more than opening stock by ₹15,000. ठीक है, 15,000 रुपया से ज्यादा होगा। Find out sales, debtors, closing and opening stock and creditors. Sales क्या होगा फॉर्मूला? Sales is equal to gross profit, sorry gross profit ratio is equal to, तो सेल्स निकालना है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से ही निकाल सकते हैं, एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द सम। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 5 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स हमको निकालना पड़ेगा इनटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, तो नेट सेल्स कितना होगा? इज इक्वल टू ₹25 लाख। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इतना दूर तो क्लियर ही था, इजी पार्ट है। नेक्स्ट, डेटर्स। डेटर्स क्या क्या होता है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो से फॉर्मूला आ जाता है, डेटर्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 3। क्रेडिट पीरियड सम में दिया गया है 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12, तो क्रेडिट सेल्स कितना है? वी अज्यूम दैट द एंटायर सेल्स इज क्रेडिट सेल्स, वी अज्यूम दैट द एंटायर सेल्स इज क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो एक एंटायर सेल्स इज क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स इनटू क्रेडिट सेल्स 25 लाख इनटू क्रेडिट पीरियड 3 डिवाइडेड बाय 12, तो डेटर्स आ जाएगा हम लोगों को 6,25,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप लोग नोट में एक चीज लिख सकते हैं आप लोगों को समझने के लिए, इफ लिखिएगा प्लीज, प्लीज नोट इट डाउन, लिखिएगा प्लीज। The amount of purchase will be, sorry, can be, the amount of purchase can be derived from cost of goods sold. The amount of purchase can be derived from cost of goods sold. क्या होगा? आप लोग जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, परचेस किधर से आएगा? जब भी आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, तो जिस फॉर्मूला से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा उस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा तो आप लोगों को परचेज मिल जाएगा। इज इट क्लियर? द अमाउंट ऑफ परचेज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज इट क्लियर? चलिए, डेटर्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 12, तो क्रेडिट सेल्स कितना है? 25 लाख इनटू क्रेडिट पीरियड 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 6,25,000।
Then comes the closing stock and opening stock. Stock velocity is equal to cost of goods sold divided by average stock. Stock velocity कितना है? Stock velocity will be 12/3 as given in the question. तो आ जाएगा 4. तो cost of goods sold कितना है? 25 lakhs minus 5 lakhs divided by average stock. और average stock will be 5 lakhs. Now comes average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. If we assume that opening stock is the same आएगा, closing stock will be opening stock plus 15,000. You can also do it by assuming that opening stock is X, then closing stock will be X plus 15,000. If opening stock is X, then closing stock will be X plus 15,000. And we have already find out average stock is equal to 5 lakh. Then opening stock अगर X पकड़ेंगे तो 2X plus 15,000 divided by 2 is equal to 5 lakhs. Then therefore opening stock will be 4,95,000 and closing stock will be 4,95,000 plus 15,000, 4,92,500 plus 15,000, because in the question it is given that closing stock is more than opening stock by rupees 15,000. मतलब opening stock से 15,000 रुपया से ज्यादा है closing stock. तो इसलिए opening stock अगर 4,92,500 आता है तो उसका साथ हम लोग 15,000 रुपया ऐड कर रहा है. तो मेरे को टोटल कितना आ रहा है? 5,07,500. Then creditors is equal to credit purchase into credit period divided by 12. तो credit purchase कितना हुआ? Credit purchase तो नीचे सामने देखिएगा, उसका बाद में दिया गया purchase is equal to cost of goods sold plus opening plus closing stock minus opening stock. तो cost of goods sold कितना है? 20 lakh plus closing stock कितना है? 5,07,500 minus opening stock 4,92,500 is equal to 20,15,000. Then we put the figure of purchase in the as we assume that the enter purchase is credit purchase. So we put 2,15,000 in credit purchase into credit period at 3 months, 3 divided by 12. We get the figure of creditors 5,03,750. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Clear to everybody now? Now we will move to sum number 4. ये थोड़ा टफ सम है तो आता नहीं है, कभी कभार आया है तो एक बार चेक कर दे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में. From the following information prepare a summarized balance sheet. अब तो उल्टा दे दिया, एक तो बैलेंस शीट बनाने दे दिया. इस टाइप का सम एक बार आया था एमसीए में, एमसीए में आया था. एमसीए में भी यही चैप्टर है रेशियो एनालिसिस का. तो एक बार एमसीए में ये सम आया था, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करने दिया था. जनरली देता नहीं है, एक बार एमसीए में ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करने दे दिए थे, मकाउट से क्वेश्चन में आया था. तो मैं ऐसा सबको डिस्कस कर रहा हूँ. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट. अब क्या बोला? उल्टा बोला. मैंने इतना दिन तक बोल रहा था कि आपको बैलेंस शीट दे देगा, उससे बनाना पड़ेगा. अब उल्टा बोल दिया कि हमको बैलेंस शीट बनाना है. इस सम में क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? स्टॉक वेलोसिटी, ये है जितना भी सम से सबसे हार्डेस्ट टाइप का सम है. ये जो 4 नंबर का सम है, ये सबसे हार्डेस्ट वैरायटी का सम है. एक बार आया था, 1-2 बार आया था एमसीए में, ठीक है ना. बैलेंस शीट बनाने दिया था. स्टॉक वेलोसिटी 6 मंथ 6 टाइम्स है, सॉरी 6 टाइम्स है. स्टॉक वेलोसिटी 6 टाइम्स है. तो स्टॉक वेलोसिटी अगर 6 टाइम्स है तो स्टॉक टर्नओवर कितना होगा? एनीबॉडी? स्टॉक टर्नओवर होगा 2 मंथ्स. 2 मंथ्स होगा. वेरी गुड. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स. कैपिटल टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 20%. डेटर्स कलेक्शन पीरियड मतलब डेट कलेक्शन पीरियड मतलब डेटर्स कलेक्शन पीरियड ही पकड़ सकते हैं. तो 2 मंथ्स है. डेटर्स टर्नओवर भी बोल सकता है, 2 मंथ्स है. उधारी से माल खरीदा
तो मेरे को वो पैसा आने में 2 मंथ लग जाता है। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड मतलब जिस दिन से मैं उधारी में माल खरीदा, परचेस किया हूं, 73 डेज बाद उसको हम लोग पैसा देते हैं, तो उसको बोला जाता है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 73 डेज। देन कम्स ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है 60 रुपीज 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है रुपीज 60,000। फिर क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक वाज रुपीज 5,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये पुराना वाला सम नंबर 3 जैसा ही है। क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक से 5,000 रुपया से ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक से 5,000 रुपया से ज्यादा है। आई रिपीट द सम, एक बार फिर सम को पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर समराइज बैलेंस शीट। हमको बैलेंस शीट अभी बनाना है as at 31st March 2010। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, स्टॉक वेलोसिटी 6 टाइम्स, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, कैपिटल टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट कितना मार्जिन है 20% मार्जिन है, जितना सेल है उसका ऊपर 20% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। डेट कलेक्शन पीरियड मतलब मैं जब उधारी देता हूं, उधारी में सामान बेचता हूं, उससे 2 महीना बाद मेरे को पैसा मिलता है, मतलब आफ्टर 60 डेज। रादर 2 मंथ ही पकड़िएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो सकता है 30 प्लस 31 61 डेज भी हो सकता है, ये तो 31 प्लस 28 मंथ्स ऐसा भी हो सकता है। 2 मंथ ही पकड़िएगा, जिधर मंथ देता है तो मंथ ही पकड़ के चलिएगा। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इधर डेज में दिया गया तो 73 डेज ही पकड़िएगा। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड मतलब जब मैं उधारी में खरीदता हूं, आफ्टर 73 डेज हम पैसा पेमेंट करते हैं। उधारी में आज लिया तो आज से 73 डेज बाद मैं पैसा वापस करता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है रुपीज 60। ग्रॉस प्रॉफिट कितना, सॉरी 60,000 मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है 60,000 और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेरा 20% है। कैन एनीबॉडी से मेरा टोटल सेल्स कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है, तो और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है 20%, तो टोटल सेल्स कितना होगा, एनीबॉडी टोटल सेल्स कितना होगा, कोई बोल सकते हैं क्लास में, टोटल सेल्स कितना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट है 60,000, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपया, तो 60,000 इज इक्वल टू 20% इज इक्वल टू 60,000, तो 100% विल बी 3 लाख। सर 30 लाख 3 लाख 30 লাখ স্যার। 30 lakhs হচ্ছে না, হ্যাঁ 30 lakhs, हाँ 30 lakhs 10%, हाँ 30 लाख, ठीक, गुड 30 lakhs होगा, 30 lakhs না একটু দেখেনি, দেখা যাচ্ছে 3 লাখ মানে 10% মানে হচ্ছে 30,000, না না 3 lakhs ই হবে গো। হ্যাঁ স্যার 3 lakhs হচ্ছে স্যার 20% 20% 3 lakhs। হ্যাঁ ঠিক আছে 3 lakhs ই হবে। चलो नेट सेल्स इज इक्वल टू 3 लाख, तो नेट सेल्स कितना है 3 लाख रुपया। तो इस सम में ऐसा हम लोग कंप्यूट भी कर सकते हैं। देखिए ये आ गया, तो हम लोग निकल कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 60,000, तो नेट सेल्स मेरा निकालना पड़ेगा 60,000 इंटू 100 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है 20%, तो हम लोग क्या आएगा, तो नेट सेल्स इज इक्वल टू 3 लाख, नेट सेल्स इज इक्वल टू 3 लाख। Therefore cost of goods sold is equal to sales minus gross profit, cost of goods sold is equal to sales minus gross profit, cost of goods sold is equal to sales minus cost of goods sold क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 60,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा 2,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स मेरा 3 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 60,000 है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 2,40,000। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, इतना दूर तो लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके ही है। डेटर्स कितना है, डेटर्स इज इक्वल टू
credit sales into credit period divided by 12. तो क्रेडिट पीरियड एज पर द क्वेश्चन दिया गया है 2। क्वेश्चन में क्रेडिट पीरियड कितना दिन दिया गया है? देखिएगा क्रेडिट पीरियड दिया गया है 2 मंथ। क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड कितना है? डेटर्स कलेक्शन पीरियड 2 मंथ। ক্রেডিট পেমেন্ট পিরিয়ড হবে না স্যার নাকি? এই দেখো আমি এটা ডেটার্স বের করছি। ক্রেডিট পিরিয়ড মানে আমি কাউকে ধার দিচ্ছি ওকে ওকে স্যার ওকে স্যার ক্রেডিট গেছে? সেলস ক্রেডিট পিরিয়ড ওকে স্যার ওকে বুঝতে পেরেছো তো? ডেটার্স যখন আসবে আমি क्रेडिट काउके दिच्छी उधारी में माल बेचा हूं तो 2 महीना बाद पैसा मिलता है मेरे को। क्रेडिट पीरियड कितना है? 2। इज इट क्लियर अनिर्बाण? ना यस सर ओके, इज इट क्लियर अनिर्बाण? यस सर 3 lakh into 2 by 12, then it will be rupees 50,000। 3 lakh into 2 divided by 12 करेंगे, ये एस्टेरिक मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये एस्टेरिक मतलब मल्टीप्लिकेशन है। 3 lakh into 2 by 12 तो आएगा 50,000। तो डेटर्स कितना है? 50,000। देन क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक वेलोसिटी बोल दिया 6, क्वेश्चन में आया दे दिया स्टॉक वेलोसिटी 6 टाइम्स। देखिएगा स्टॉक वेलोसिटी 6 टाइम्स क्वेश्चन में है, ये स्टॉक वेलोसिटी 6 टाइम्स। ठीक है, तो स्टॉक वेलोसिटी कितना है? 6 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग निकल चुके हैं 2,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 2,40,000। तो 6 इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। पता नहीं एवरेज स्टॉक कितना है, तो एवरेज स्टॉक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 2,40,000। देयरफॉर एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू रुपीस 40,000। इज इट क्लियर? पुराना सम जैसे ही जा रहा है। यस सर पुराना सम जैसे ही जा रहा है। नाउ एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इधर 2 नहीं आया, ठीक है ना, इधर 2 आएगा, ठीक है ना, प्रिंटिंग एरर है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 आएगा इधर। तो एवरेज स्टॉक कितना बैठा है? 40,000। एवरेज स्टॉक कितना है? 40,000। एवरेज स्टॉक कितना है? 40,000 एज पर द सम 40,000 आ गया। 40,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस 5,000। आप एक्स पकड़ सकते हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग क्या लिखे? ओपनिंग स्टॉक प्लस 5,000। क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या लिखे? ओपनिंग स्टॉक प्लस 5,000। ठीक है ना, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो गया? अगर और लूसिड वे से करेंगे, इजी वे, आप लोग ही बोले कि ओपनिंग स्टॉक को हम लोग एक्स पकड़ लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक होगा एक्स प्लस 5,000। सो क्या होगा? एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे एक्स प्लस 5,000। इज इट क्लियर? लास्ट समय ऐसा ही किए थे। यस सर ओपनिंग स्टॉक प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 37,500। तो आएगा कितना? ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 37,500। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना है? 37,500। ओपनिंग स्टॉक प्लस 5,000 तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 37,500 प्लस 5,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 37,500 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 42,500। इज इट क्लियर? देखिएगा एक बार प्लीज, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, पूरा चीज को एक बार देखिए, तो शाम को एक बार देखिए अप टू फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो के पहले तक देखिए ना, एक बार शाम को चेक कीजिए, शाम को पढ़िए, फिर एक बार चेक कीजिए, मैं धीरे धीरे नीचे कर दूंगा।
স্যার বলছি অ্যাভারেজ স্টকটা কোথা থেকে পেলো? হ্যাঁ, এভারেজ স্টক, ওপেনিং স্টক, এই যে এইখান থেকে এভারেজ স্টক তো বের করলাম আমরা। এভারেজ স্টক কে কি পাইনি? এভারেজ স্টক, এম আই অডিবল না? হ্যালো, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বুঝলাম হ্যাঁ বুঝলাম। হ্যাঁ, এইখান থেকে পেয়েছি। এই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন দিয়ে 6 দিয়ে ভাগ করে 2,40,000 করে 6 ডিভাইড। হয়েছে দেখা? हेलो, हाँ देखेंगे सर। सब? हो गया। मैं फिक्स्ड एसेट में जा रहा हूँ। अब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट कैसे आएगा? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से हम लोग फिक्स्ड एसेट निकालेंगे। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। हम लोग पहले निकाल चुके हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 2,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 2,40,000। तो 2,40,000, 2,40,000, ये फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है? 4 है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है? 4 है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 4 है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4 है। तो कितना हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स कितना है हमको निकालना है। फिक्स्ड एसेट ऐसे रख दिया और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है मेरे को? 4 है। तो फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू कितना आएगा? 60,000। 4 फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 2,40,000, देयरफॉर 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरे को फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 60,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर? एक बार देखिएगा प्लीज। ये जो 4 है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। जो 4 है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ये क्वेश्चन में दिया गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वी हैव अर्लियर कंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हम लोगों का आया था 2,40,000। हो गया? বুঝা গেছে? ইজ ইট স্যার ক্লিয়ার? হ্যাঁ বলো। স্যার প্রতিটা টার্নওভার রেশিও স্যার কস্ট অফ গুডস সোল্ড এর দিয়েই হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, ফিক্সড এসেটটা কস্ট অফ গুডস সোল্ড দিয়ে বের করো। না ক্যাপিটাল স্যার, এমপ্লয়েডটা ক্যাপিটালটাও তো। হ্যাঁ, কস্ট অফ গুডস সোল্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो 2 दिया गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दिया गया कितना है? 2 है। क्वेश्चन में कितना है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो 2 है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना है? 2 है। तो कैपिटल टर्नओवर क्या है? 2 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? 2,40,000। कैपिटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 2,40,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? 1,20,000। इज इट क्लियर? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 1,20,000। नाउ क्रेडिटर्स, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1,20,000। इज इट क्लियर?
कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड आया? इससे फॉर्मूला पुट कर दिया। क्लियर है ना? हाँ या ना? यस सर क्लियर। ओके, सबका क्लियर है? तो अगर किसी का क्लियर नहीं है तो बोलिएगा प्लीज, मैं फिर एक बार समझा दूंगा। किसी को अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला गया, इसका अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बोलिएगा, मैं फिर एक बार इसको समझा दूंगा। नहीं है, चलिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज इक्वल टू क्या होगा? क्रेडिटर्स को कैसे निकालेंगे? परचेज, मतलब जिन लोगों क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है? एनीबॉडी, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? বাংলায় বলো, হিন্দিতে বলো, ইংলিশে বলো। ক্রেডিটর্স মানে কি? স্যার ক্রেডিট পারচেজ যখন ঘটে। মানে ধারে কারো কাছ থেকে কিনেছি। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ক্রেডিটর্স আছে কি যারা আমাদের কাছ থেকে টাকা পায়। ক্রেডিটর্স মানে যারা আমাদের কাছ থেকে টাকা পায়। টাকা কখন পাবে লোক? বিজনেসের কাছ থেকে, যখন না আমি তার কাছ থেকে কোনো জিনিস ধারে কিনেছি, নলে তো কেউ আমার কাছে টাকা পাবে না। তো ক্রেডিটর্স অ্যারাইজেস when there will be a credit purchase. Creditors will arise when there will be a credit purchase. ये मैं लिखा दिया आज का क्लास में। तो creditors is equal to credit purchase is equal to cost of goods sold plus closing stock minus opening stock। कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करके लिखा हूं। इस चीज को ही हम लोग थोड़ा चेंज करके लिखा हूं। ये जो चीज था परचेज, लास्ट वाला सम में, लास्ट वाला सम में आ गया, प्लीज देखिएगा। परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यही चीज को हम लोग थोड़ा लिखा है इधर। ट्रेड परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 42,500, क्लोजिंग स्टॉक 42,500, ओपनिंग स्टॉक 37,500। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2,45,000। इज इट क्लियर? यस सर। Then creditors will be credit purchase into creditors will be credit purchase into credit period divided by 365 days। अब इधर 365 डेज लिया क्यों? क्वेश्चन में इधर 78 डेज में 79 डेज दिया गया है, इसलिए हम लोग 365 लिए। क्वेश्चन 73 डेज 73 डेज दिया गया है। इधर क्या मंथ्स में दिया था, इसलिए 12 से डिवाइड किया। इधर 73 डेज दिया तो इसलिए 365 से डिवाइड कर रहा हूं। इज इट क्लियर? यस सर। देखिएगा इधर 73, इसलिए 73 लिया। 73 डेज डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो 49,000 आएगा। कितना आएगा? 49,000। हुआ? चलिए अब बैलेंस यस शीट, सर। ये आपको बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट में कैपिटल आता है, तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकल चुके हैं। कितना है? 1,20,000। किधर से आया? कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000। ये फिगर, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। कैपिटल पूरा तो फॉर्मेट नहीं है, जो जो इंफॉर्मेशन है वो लोग हम लोग पुट कर चुके हैं। कैपिटल 1,20,000 लायबिलिटी साइड में आता है। क्रेडिटर्स इधर से निकाल लिया 49,000, ये इधर पुट कर दिया। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से हम लोग फिक्स्ड एसेट निकल चुके हैं। कितना है फिक्स्ड एसेट्स मेरा? 60,000
फिक्स्ड एसेट्स कितना है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से फिक्स्ड एसेट 60,000 ये आ गया, फिक्स्ड एसेट 60,000। करंट एसेट्स ये हेड है एक तो, करंट एसेट्स का हेड है एक तो, इसका अंदर क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, अदर करंट एसेट्स आता है, ठीक है। अदर करंट एसेट्स बैलेंसिंग फिगर है, डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर मींस डिफरेंस। तो करंट एसेट्स एक तो हेड है, करंट एसेट्स तो एक तो हेड है। करंट एसेट्स का अंदर में क्या क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग स्टॉक टर्न 42,500 अर्लियर निकल चुके हैं, देखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक 42,900, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी 42,500, ये हम लोग निकल चुके इधर से 42,500, 42,500। डेटर्स कितना, डेटर्स टर्नओवर से 50,000, डेटर्स 50,000, डेटर्स टर्नओवर रेशियो से डेटर्स 50,000, डेटर्स 50,000, डेटर्स टर्नओवर से डेटर्स 50,000, डेटर्स टर्नओवर रेशियो से डेटर्स 50,000, डेटर्स टर्नओवर रेशियो से डेटर्स 50,000 आ गया। डेटर्स 50,000 आ गया। अदर करंट एसेट्स का बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है, देखिएगा। या अदर करंट एसेट्स का अंदर इधर क्या क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आता है। अदर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट बोलकर लिखिएगा। अदर करंट एसेट्स कंप्राइजेस, अदर करंट एसेट्स कंप्राइजेस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, prepaid expenses, etc. Other current assets comprises cash in hand, cash at bank, prepaid expenses, etc. Other current assets comprises cash in hand, cash at bank, prepaid expenses, etc. Other current assets comprises cash in hand, cash at bank, prepaid expenses, etc. Is it clear? हाँ या ना, हाँ सर। लिख लिए। तो कैसे आया ये बैलेंसिंग फिगर, ये जो क्रेडिट साइड का, लाइबिलिटी साइड का जो टोटल आता है ना 1,67,000, ये बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में क्या होता है, ऑलवेज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, प्लीज नोट इट डाउन। इन बैलेंस शीट एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। इन बैलेंस शीट टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, प्लीज नोट इट डाउन। इन बैलेंस शीट टोटल, rather you can say also write total liabilities is equal to total assets. In balance sheet, comma, total liabilities is equal to total assets. In balance sheet, total liabilities is equal to total assets. In balance sheet, total liabilities is equal to total assets. तो क्या होता है, टोटल लाइबिलिटीज कितना है 1,69,000 एंड टोटल एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स विल बी 1,52,500. टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग अदर करंट एसेट्स, total assets excluding other current assets will be 1,52,500. Yes or no? Total assets excluding other current assets, total assets का अंदर क्या आएगा 60,000 plus 42,500 plus 50,000, तो आएगा क्या, तो 60 plus 50 1,10,000, 1,10,000 के साथ 42, 1,52,500. So 1,69,000 minus 1,52,500 is equal to 16,50,000. That is the balancing figure. Balancing figure means the difference figure. Please note it down. Balancing figure means the difference figure. Here, the difference between liabilities and assets. Balancing figure, please note it down. Balancing figure means the difference figure. That is the difference between total of liability side and that of asset side. Full stop.
Is it clear? सर रिपीट कीजिए. Balancing figure is the difference between the total of liability side and total of asset side. Balancing figure is the difference between total of asset side and total of liability side. Is it clear? लिखा हो चे? Yes, sir. हाँ सर. तब वो जो बैलेंसिंग फिगर उसलिए 16,500 आ गया. चलिए इतना दूर तक तो आज रेशियो एनालिसिस खत्म हो गया. अब रेशियो एनालिसिस का कुछ इसमें हम लोग ये भी दे चुके हैं, मैं दे चुका हूँ कुछ ऐसा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हेड ऑफ करंट एसेट्स में क्या आएगा? फर्नीचर, पेटेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल. ठीक है जी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हेड ऑफ करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में क्या आएगा? ठीक है जी ना. करंट एसेट्स में क्या आएगा? 1 का सी, प्रोविजन फॉर टैक्स. अगर कुछ रखता है तो ये करंट एसेट्स में आएगा. ठीक है. फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग ये आता है बहुत बार, नंबर 2 वाला. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा टोटल ऑफ करंट एसेट्स. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 2 का जो एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ करंट एसेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ करंट एसेट्स. ये बहुत बार आ चुके हैं. आप लोग किसी भी टाइम का ये उठाकर देख लीजिएगा. आप लोगों का क्या बोलता है उसको? ऑर्गेनाइजर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ करंट एसेट्स. फिर आता है द आइडियल स्टैंडर्ड फॉर लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो कितना होता है? 1:1. ठीक है ना. करंट रेशियो क्या होता है? ये छोटा एक तो सम भी आ सकता है कभी ऐसे. इफ करंट रेशियो इज 2:2 एंड करंट लायबिलिटी इज 80,000 देन द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स विल बी क्या होगा? ठीक है. करंट रेशियो 2:2 होगा. अगर 2.2 है, सॉरी 2.2 है करंट रेशियो, मतलब करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. ठीक है ना. तो अब करंट लायबिलिटीज है आपका 80,000, तो टोटल मेरा करंट एसेट्स कितना है? तो कैसे आएगा? 80,000 इंटू Sir, 2.2 into 80,000. 80,000. वेरी गुड. 2.2 इंटू 80,000. ऐसे इस टाइप का भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है. इस टाइप का भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है. अभी तो एमसीक्यू नहीं देता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है. तो ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में मिल जाएगा. इस बार का जो अभी एग्जाम गया है उसमें एमसीक्यू नहीं दे रहा है मकाउट से. फोर्थ ইয়ার দের ওটা फोर्थ ইয়ার দেবে, ফার্স্ট ইয়ার দেরও দেবে নাকি, সরি মানে সেকেন্ড ইয়ার দেরও দেবে নাকি ডাউটফুল আছে. ঠিক আছে. তো কোশ্চেন প্যাটার্ন হয়েছে ফোর্থ ইয়ার বা অন্য কোনো মানে তোমার থার্ড ইয়ারের যাদের কোশ্চেন দেখলাম সবারই এমসিকিউ কিন্তু নেই. ঠিক আছে. ওই 1 নম্বরে একটা করে আমি দুটোই দেখেছি কোশ্চেন, মানে যেটা ফোর্থ ইয়ারও আছে থার্ড ইয়ারও আছে, দুটোরই খাতা দেখছিলাম, মানে কোশ্চেনও আমি দেখেছি, কোথাতেও কিন্তু এমসিকিউ দেয়নি. স্যার আমাদেরও কি সেম প্যাটার্ন আসবে? ধরে নেওয়া যেতে পারে. আমি বলছি না ওটাই আসবে, যদি আসে তখন ওকে স্যার. বুঝতে পারছি ওই প্যাটার্নই দিতে পারে. ঠিক আছে. তো যেহেতু প্রত্যেকটা ইয়ারে একই করছে, তোমাদের প্যাটার্ন আশা করি না চেঞ্জ করবে. আমি 90% মনে হয় ওরকমই দেবে. এবার আমি বলতে পারছি না 100% ভাবে তো বলা সম্ভব না. তো যদি এরকমও দেয় তখন কিন্তু এরকম একটা কোশ্চেন ফ্রেম করতেই পারে. ইজি 1 নম্বরের কোশ্চেন ইজিলি হয়ে যাবে. देन एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ये फॉर्मूला में दिया गया है. एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या होगा? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो होगा कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू क्विक रेशियो. मतलब कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज. तो क्या होगा? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज. ऊपर में क्या आएगा? कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगा डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज. ठीक है ना. व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए fictitious assets? The fictitious asset will be discount on issue of shares. Fictitious assets will be
discount on issue of shares. An example of fictitious asset is discount on issue of shares. Is it clear? और भी आता है, लिख लीजिएगा examples of fictitious assets, लिखा भी दिया होगा लगता है क्लास में। अर्पण लिखीजिए ना क्लास है, अर्पण में लिखा दिया ना examples of fictitious assets। हेलो अर्पण, यस सर, लिखा दिया ना examples of fictitious assets। লেখানো আছে ওটা। Discount on issue of shares, comma preliminary expenses, advertisement suspense. Discount on issue of shares, comma preliminary expense, comma advertisement suspense, etc. এই তিনটাই generally আছে। हो गया सबको? হয়ে গেছে? Yes, sir. अच्छा, चलिए आज तो रेशियो एनालिसिस खत्म, मतलब टोटल क्लासेस भी खत्म हो जाएगा। तो किसी चीज में डाउट है? अच्छा, आज क्लास का फर्स्ट में एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, क्या उनका डाउट है? किधर डाउट है? बैलेंस शीट में। हेलो, कौन नाम है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये तीनों में प्रॉब्लम है। आपको किधर प्रॉब्लम है? मीन्स सर वो जो लिख मैंने कैसे बनाना पड़ेगा वही प्रॉब्लम होगा। ओके, স্যার মানে যে কটা চ্যাপ্টার করিয়েছেন ওদের নাম্বার ডিভিশনটা কেমন আছে? মোটামুটি নাম্বার ডিভিশন, এক মিনিট দাও। করানোর মধ্যে ওই যে ফার্স্টে ওই ভ্যালু নিয়েছিল, ওই কস্ট যেটা মানে ওই মার্জিনাল কস্ট, ওই কস্ট ওই ছিল, তারপরে ডেপ্রিসিয়েশন, এনপিভি, হ্যাঁ, তারপর কস্টের এই দুটো হলো। ধরো মোটামুটি তোমার ধরো 90% কভার আছে, ঠিক আছে। এবার দেখো এই রেশিও অ্যানালিসিস, ধরো এনপিভি ক্যাপিটাল বাজেটিং, ওটার হেডটাকে বলে ক্যাপিটাল বাজেট। ওই এনপিভি ওই মেথড থেকে ধরো 15 to 20 মার্কস, রেশিও অ্যানালিসিস থেকে 15 to 20 মার্কস, ডেপ্রিসিয়েশন থেকে 15 মার্কস। তারপর আর কি করেছিলাম বলো? এই কস্ট মানে মার্জিনাল কস্ট যেটা মার্জিনাল থিওরি কস্ট থেকে চ্যাপ্টার ছিল, 15, মার্জিনাল কস্ট থেকে 15, 70 হয়ে গেল এখানে। 20 20 15 15 70। ডেপ্রিসিয়েশন থেকে 15 মতো আছে তাই তো? হ্যাঁ, 10 to 15। আর এনপিভি থেকে 10 to 15 আবার ওর থেকে বেশি, এনপিভি থেকে 20 থেকে 20 থেকে 20 নম্বর থেকে 25 নম্বর ধরতে পারো। মানে আমি যদি এই চ্যাপ্টারটাকে যদি এ করে যাই, মানে পরের দিকে লাস্ট দিকে দেখবো এটাকে, হ্যাঁ, এটা প্রচুর মানে এ হচ্ছে, প্রবলেম ক্রিয়েট করছে প্রবলেম মানে। ক্রিয়েট করছে, বুঝতে পেরেছি। এটা একটু ক্রিয়েট হয় প্রবলেম। তবে যে কটা ভ্যারাইটির কোশ্চেন গুলো করানো, চারটে না যেমন ওই ভ্যারাইটি দেখালো। ডেপ্রিসিয়েশন করলে, যেমন ওই এনপিভি করলে ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে যাবে, আবার এনপিভি কিছু এ করলে আবার ডেপ্রিসিয়েশন সেটা হয়ে যাবে, ওটা করবে। আর দেখো এর মধ্যে যে চারটে ভ্যারাইটির সাম দেখালাম না, এই ভ্যারাইটির মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেয় এরা, এর বাইরে খুব একটা আসে না। তুমি ধরে নাও যদি রেশিও দেয়, একটা অঙ্ক 90% আসার চান্স আছে ওই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিয়ে। আর লাস্টের বাইরে ওই নাম্বার 2 নম্বর সামটা, আজকে যেটা ফার্স্ট 2 নাম্বারটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা দেখবে অর্গানাইজারে অনেকবার দিয়েছে, ওরা बहुत बार दिया है ऑर्गेनाइजर, उसका सिर्फ डेटा चेंज कर देता। तो उस वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला जो सम कराया था वो थोड़ा टफ है, तो आया था एक बार, एक दो बार आया था, 2 टाइम्स आया এই था एक बार। এনপিভি ডেপ্রিসিয়েশন ওই তারপর কস্টিং এর ওই চ্যাপ্টারটা থেকে কত বললে? ফার্স্টের যে একদম ফার্স্টে ওই মার্জিনাল কস্ট, মার্জিনাল কস্টিং 15 মার্কস, মানে এইগুলো আগে দেখবে, এইগুলো আগে দেখবে। বুঝতে পারছি। তো ডেপ্রিসিয়েশন আর এনপিভি পুরো তো একই বলতে গেলে এই ম্যাথ গুলো। না, অঙ্কটা অনেকটা এক, কিন্তু ওরা ডেপ্রিসিয়েশন অনেক সময় কি করে ওই এসএলএম ডব্লিউডিবি তে কম্পিউট করতে দেয়, ওই ডেপ্রিসিয়েশন একটা ছোট অঙ্কও দিয়ে দেয়, ঠিক আছে। স্ক্র্যাপ ভ্যালু দিয়ে দিল, ইউজফুল লাইফ দিয়ে দিল, ঠিক আছে, স্ক্র্যাপ আর স্যালভেজ ভ্যালু দিল, ইউজফুল লাইফ দিল, তারপর তোমাকে ইনস্টলেশন কস্ট দিয়ে দিল, তারপর কস্ট অফ দ্য অ্যাসেট দিল, বের করো। তারপর এবার ডেপ্রিসিয়েশন বললো, দুটো মেথডে বের করো। বের করতে দিয়ে সাপোজ ধরো অ্যামাউন্ট অফ ডেপ্রিসিয়েশন আর রেট অফ ডেপ্রিসিয়েশন বের করলো, এবং আন্ডার এসএলএম আর ডব্লিউডিবি তে বের করো। এবার সেটাও তোমাকে দেখাতে হতে পারে 2 বছরে। ও একটা ইন্টিগ্রেটেড 15 নম্বরের অঙ্ক দিয়ে দিল, বোঝা গেছে?
এরকম দেয় একটু। Is it clear? Orpon? Hello? Hello? yes sir, yes sir. Okay. जो जो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के लेकर क्वेश्चन था, কি क्वेश्चन ছিল তোমার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট রিলেটেড বলো, বুঝতে পারছো না? হ্যাঁ স্যার, মানে এই বক্সটা কিভাবে বানাবো, মানে ইনফরমেশন গুলো কোন সাইডে কি দিতে হবে? আচ্ছা, লিখে রাখো ইন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড, in the left hand side of trading account, লেখো in the left hand side of trading account, in the left hand side of trading account, that is debit side. Left hand side को debit side बोला जाता है. In the left hand side of trading account, that is the debit side, we will take all factory expenses. In the left hand side of trading account, that is debit side, we will take all factory expenses. In the left hand side of trading account, that is the debit side, we will take all factory expenses. এখানে দেখো পারচেজ বা যে কোনো জিনিসের প্রোডাকশন और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखिएगा और क्लियर होगा. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. Is it clear? In the credit side, that is the right hand side of trading account. In the credit side, that is the right hand side of trading account, we will take all direct incomes. We will take all direct income. In the right hand side of trading account, we will take all direct incomes and closing stock. All direct incomes and closing stock. All direct income, the sales जैसे दिख रहा है इधर, and closing stock. স্যার ডাইরেক্ট ইনকাম মানে? डायरेक्टली जो इनकम हम लोग वो ऑपरेशन से आता है मेरे को, जो इनकम আর ধরো তোমার ডাইরেক্ট, ধরো তোমার একটা মুদিখানার দোকান আছে, গ্রসারি মুদিখানার দোকান আছে, মুদিখানার দোকানে চাল ডাল বিক্রি করে যে পয়সাটা সেটা তোমার ডাইরেক্ট ইনকাম. আর ধরো চিনির বস্তা, তেলের টিন বিক্রি করে যে পয়সা, অনেক সময় থাকে না তেলের টিন বস্তা তোমার কাছে পড়ে আছে, সেগুলো বেচে দিচ্ছ, সেগুলো বেচে তো কিছু টাকা আসে, সেগুলো হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ইনকাম. ইজ ইট ক্লিয়ার? ইন দ্য কনটেক্সট অফ গ্রসারি শপ, কার্টুন বিস্কুটের কার্টুন ওইসবগুলো বিক্রি করে যে ইনকাম আছে সেগুলোকে বলে ইনডাইরেক্ট ইনকাম. মানে সেল থেকে যে ইনকামটা আসে, ডাইরেক্ট সেল থেকে যে ইনকামটা আসে তোমার ট্রেড অফ বিজনেসের, সেটাকেই বলে ডাইরেক্ট ইনকাম. তোমার নেচার অফ বিজনেস. ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. ইয়েস স্যার. Then in the profit and loss account, in the credit side of profit and loss account, so in the debit side of profit and loss account, দেখা যাচ্ছে এটা প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার. আচ্ছা, in the debit side of profit and loss account, that is the left hand side, that in the left hand side of profit and loss account, that is the debit side, ऐसे लिखिएगा. In the left hand side of profit and loss account, that is the debit side, we will take all factory, all office expenses or indirect expenses. I repeat the sentence once again. In
the left hand side of profit and loss account, we will take all indirect, all factory, or sorry, all office expenses or indirect expenses. In the left hand side of profit and loss account, we will take all indirect expenses or office expenses. In the right hand side, that is the credit side of profit and loss account, in the right hand side, that is the credit side of profit and loss account, we will take all indirect incomes. We will take all indirect income. That is rent received. Here we can find out that the interest on investment, commission received, discount received. ठीक है, ये सब रेंट रिसिप्ट भी इधर आएगा, नहीं दिया गया ये सब आता है, बैड डेट रिकवरी, ये सब आइटम्स आते रहते हैं। एक इलस्ट्रेटिव है और इंक्लूसिव भी है, और भी चीज आ सकता है इसमें। স্যার এখানে যেগুলো দেওয়া আছে ওর বাইরেও আসবে। হ্যাঁ, ওর বাইরেও আসবে, মানে ইনকাম কিচ্ছু, মানে সেলস ছাড়া বা যা তুমি যদি তোমাদের জন্য ঠিক আছে, সেলস ছাড়া যা ইনকাম দেখবে এখানে ফেলে দেবে पीएल এর क्रेडिट साइड। सेल्स छोड़कर दूसरा कुछ भी इनकम आपको लगेगा ये इनकम है तो पीएल का क्रेडिट साइड में दे दीजिएगा। सेल्स छोड़कर, एक्सक्लूडिंग सेल्स, एनी अदर इनकम विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ पीएल अकाउंट। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now comes the balance sheet. In the left hand side of balance sheet, we'll take liabilities. In the left hand side of balance sheet, we take liabilities, and on the right hand side of balance sheet, we take all assets. In the left hand side of balance sheet, we take all liabilities, and on the right hand side of balance sheet, we take all assets. Is it clear? In the left hand side of balance sheet, we take all liabilities, and in the right hand side of balance sheet, we'll take all assets. Is it clear? Yes, sir. So what do you mean by liabilities? In the liability side, the first item will be capital, and it is also an illustrative. तो उसका साथ अगर फर्दर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर होता है तो वो ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो आएगा। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट किधर से आएगा? पीएल से आएगा। ये जो नेट प्रॉफिट है ये पीएल से आएगा, वो आएगा तो उसको दिखाएंगे। ड्राइंग्स है तो लेस करेंगे। अगर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स है तो उसको साथ लेस होगा। इनकम टैक्स है तो लेस होगा। अगर ये सब रहता है तो जनरली रहता है कुछ भी नहीं, कैपिटल्स रहता है, नेट प्रॉफिट रहता है। नेट प्रॉफिट तो ऑलवेज देयर विल बी, नेट प्रॉफिट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट, और ये हर टाइम रहेगा। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, अगर लॉस होता है तो लेस करना पड़ेगा। अगर नेट लॉस होगा, प्लीज गौर से सुन लीजिएगा, नेट लॉस होगा तो कैपिटल से लेस होगा। नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं कैपिटल के साथ, नेट लॉस होगा तो उसको हम लोग लेस करेंगे, फिर लेस ड्राइंग्स करेंगे, फिर इनकम टैक्स, ये सब अगर रहेगा तो आता है। जनरली क्या होता है, तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। अगर नेट प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग ऐड करेंगे, नेट लॉस होगा तो कैपिटल से लेस करेंगे और ड्राइंग्स का फिगर लेस करेंगे। thereafter comes current liabilities. करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, प्री रिसीव्ड इनकम, मतलब पहले से मेरे को इनकम मिल गया, मतलब एडवांस रिसीव्ड, ठीक है ना, कुछ एडवांस मिला मेरे को, कोई मेरे को एडवांस दे दिया और मैं सर्विस नहीं तो प्रोडक्ट नहीं दिया, मैं किसी के पास से एडवांस ले लिया, उसको सर्विस नहीं तो प्रोडक्ट नहीं दिया, वो मेरा लाइबिलिटीज का अंडर करंट लाइबिलिटीज आएगा।
फिर प्री रिसीव्ड इनकम वही हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट अ शॉर्ट टर्म लोन। देयरआफ्टर बिल्स पेएबल, कितना पैसा मेरे को पे करना पड़ेगा उसको, बिल्स पेएबल, इट इज आल्सो अ शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दैट कम्स अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। प्रोविजन फॉर टैक्स, मैं टैक्स के लिए कितना पैसा हटा कर रखूंगा उसको प्रोविजन फॉर टैक्स बोला जाता है। और प्रोपोज डिविडेंड का मतलब होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोपोज किया है कितना डिविडेंड दिया जाएगा, ये प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है ना। अगर फाइनल डिविडेंड होता तो पीएल में आ जाता, प्रोपोज डिविडेंड इसलिए लायबिलिटी साइड में आया, फाइनल डिविडेंड होता तो पीएल में आ जाता। चलिए एसेट में क्या क्या आता है, गुडविल आता है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर गुडविल आएगा, पेटेंट एंड कॉपीराइट आएगा, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग से क्या होता है, लैंड का तो डिप्रिसिएशन बहुत कम ही होता है, बिल्डिंग का वैल्यू डिप्रिशिएट करता है। तो अगर डिप्रिसिएशन कुछ रहेगा तो लेस होगा, सम में दिया रहेगा परसेंटेज दिया रहता है, बिल्डिंग का वैल्यू का ऊपर 10% डिप्रिसिएशन, तो अगर जितना बिल्डिंग का वैल्यू होगा उसका ऊपर 10% आपको चार्ज करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी उसका ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिएगा, एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन में कितना रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का ऊपर अगर आता है क्वेश्चन में तो उसका भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में रहेगा, और इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में रहेगा, तो इसको पुट करना पड़ेगा। फिर करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, करंट एसेट्स में आता है हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक, सैंडी डेटर्स। अब सैंडी डेटर्स पे क्या होता है, प्रोविजंस लेस होता है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स ये लेस होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक, सैंडी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल आएगा, बिल्स रिसीवेबल का अंदर अगर कुछ बिल्स डिसऑनर रहता है तो उसको भी हम लोग लेस करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा बिल्स डिसऑनर, कोई फिगर रहेगा तो लेस करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट बिल्स रिसीवेबल हम लोग बैठा देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस मैं पहले से दे चुका हूँ उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है, पहले से देकर रखा हूँ, जैसे फोन का बिल ये सब हम लोग पहले दे देते हैं प्रीपेड। जैसे ये तो हम लोगों का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, कंपनी भी कोई किसी को अगर पहले पैसा दे दिया और सर्विस नहीं लिया तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला जाता है, ठीक है ना। फिर एक्रूड इनकम, इनकम एक्रू हो गया, एक्रूड मतलब क्या, एराइज, इनकम एक्रूड और एराइज हो गया, हमको नहीं मिला अभी तक, उसको भी एसेट में लेते हैं। अगर इनकम मिल गया तो पीएल का क्रेडिट साइड में आएगा, अभी इनकम हो गया मिला नहीं हाथ में तो वो एसेट में आता है। कैश इन हैंड, हाथ में कितना पैसा है मतलब कैश बॉक्स में कितना पैसा है, कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा है, अगर कैश एट बैंक में कोई चेक डिसऑनर हुआ तो उसको लेस करना पड़ेगा कैश एट बैंक से। फिर इंश्योरेंस क्लेम मतलब कोई इंश्योरेंस रहा, आग के ऊपर इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, चोरी हो गया कुछ हो गया उसका ऊपर इंश्योरेंस रखा है, अगर आग लग गया तो जो वेस्टेज जो डैमेज हुआ उसका अगेंस्ट पे कुछ पैसा मिला तो वो इंश्योरेंस क्लेम में आ जाएगा। यही है बैलेंस शीट। आपका और कोई क्वेश्चन है प्लीज, आपका नाम क्या है जो क्वेश्चन किए, हेलो हेलो सर ओंकार। ओंकार, तो ओंकार और कोई क्वेश्चन है? না স্যার। দেখিয়েগা তোমাদের জন্য কি করতে হবে না এইগুলোকে দেখে একবার একটু মানে ভালো করে মাইন্ডে রাখার চেষ্টা করতে। ये बैलेंस शीट पूरा एक तो बैलेंस शीट भी आता है 15 मार्क्स का। अर्पण, हेलो अर्पण, अर्पण आर यू इन द क्लास, एनीबॉडी? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये यस पूरा सर, एक तो यस सर। फाइनल अकाउंट, अगर है ना तो फाइनल अकाउंट से भी एक तो सम आता है, पूरा फाइनल अकाउंट बनाने देता है 15 मार्क्स का। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड এখান लॉस থেকে अकाउंट, बैलेंस 15 शीट তাই তো? এখান থেকে 15, রেশিও থেকে 15, মার্জিনাল কস্ট 15, ক্যাপিটাল বাজেটিং 15 to 20, depreciation 10 to 15। একবার নাম্বার ডিভিশন গুলো বলেই দিন, লিখে নিচ্ছি। লেখো মার্জিনাল কস্টিং 10 to 15, फाइनल अकाउंट्स 15, the ratio analysis 15 to 20, capital budgeting 15 to 20,
কি বললাম একবার বলো, প্লিজ রিপিট। মার্জিনাল The কস্ট, marginal ফাইনাল cost- অ্যাকাউন্ট, রেশিও এক মিনিট। অ্যানালাইসিস আর হচ্ছে capital budget। না না, প্রত্যেকটার স্প্লিটটা বলো, আমি কোনো কিছু ছেড়ে গেছি নাকি একবার শুনে নিই। মার্জিনাল কস্ট, ফাইনাল অ্যাকাউন্টস। না না না, পার্সেন্টেজটা বলো, কতটা বলেছি হ্যাঁ, মার্জিনাল। মার্জিনাল কস্ট 10 to 15, হ্যাঁ ফাইনাল অ্যাকাউন্টস 15, হ্যাঁ রেশিও অ্যানালাইসিস 15 to 20, হ্যাঁ। ক্যাপিটাল বাজেটিং 15 to 20। ক্যাপিটাল বাজেটিং, ডেপ্রিসিয়েশন 10 to 15 হ্যাঁ, হলো। ভাইটাল সবকটাই আমি কভার করেছি। এবার টোটাল কত হচ্ছে দেখো, 120 এর মতো আসছে। হায়ার সাইডের টোটাল গুলো দেখো, যেখানে 10 to 15 বলেছি বা 20 বলেছি, 15টাকে অ্যাড করে দেখো, 120 এর মতো আসছে, 120 আসছে। 85, হ্যাঁ 85। হায়ার গুলো যোগ করলে ইয়েস ইয়েস। কি বলেছি আরেকবার বলো তো আমাকে। মার্জিনাল কস্ট 10 to 15, আচ্ছা ফাইনাল অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা, ওই কস্ট শিট যেটা বলেছিলাম, ও কস্ট শিট বলেছিলাম না ফার্স্টে। ওটাই তো ফাইনাল অ্যাকাউন্টস। না না না, ফার্স্টে একদম ফার্স্ট ক্লাসের দিকে কস্ট বলেছিলাম না, ভেরিয়েবল কস্ট, প্রাইম কস্ট বলেছিলাম না। ওটা তো এমনি মার্জিনাল কস্টিং এর মধ্যেই ধরেছিল। মার্জিনাল কস্টিং না না না, ওটার মধ্যে একটা প্রাইম ছিল, কস্ট শিটটা একটা ছিল, দিয়েছিলাম না একটা নোটস, কস্ট এন্ড কস্ট শিট বলে। হ্যাঁ স্যার, ভেরিয়েবল টাইপ অফ কস্ট যেগুলো ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আলাদা 10 নম্বর ধরো ওখানে, ওটা ভেরিয়াস টাইপস অফ কস্ট বলেছিল, তারপরে মার্জিনাল কস্টিং। ওর মধ্যে কস্ট শিট আছে, প্রাইম কস্ট আছে, ফ্যাক্টরি ওভারহেড আছে, ওটা আরো 15 ধরো। হ্যাঁ বলো। একটু রিকারিং নন রিকারিংটা আজকে একটু বলে দেন। হ্যাঁ বলে দিচ্ছি, ওটা ধরো আরো 15 ধরে নাও। কস্ট এন্ড কস্ট শিট 15। এরপরে কি থিওরি থাকে কিছু টুকটাক, ওই ধরো আরো 15, আরো একটা ধরো ওই 5-20 নম্বরের একটা থিওরি থাকবে, দেখবে 5 নম্বর করে শর্ট নোট থাকে না, এইসব চ্যাপ্টার গুলো থেকে মিশিয়ে। ওই পিভি রেশিও দিয়ে, প্রেজেন্ট ভ্যালু, ফিউচার ভ্যালু। ওটার মধ্যে, ওটা ক্যাপিটাল বাজেটিং এর মধ্যে চলে আসে। প্রেজেন্ট ভ্যালু, ফিউচার ভ্যালু যেটা আছে না, যে বলা থা না, ওর পে ব্যাক পিরিয়ড, ওই পুরোটাই ক্যাপিটাল বাজেটিং হেড চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে। নেট আর প্রেজেন্ট একটা প্রেজেন্ট ওয়ার্ক আর ফিউচার ওয়ার্ক। হ্যাঁ, ওই পুরো জিনিসটাই তোমার ক্যাপিটাল বাজেটিং, একটা ওয়াইডার চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে, বুঝতে পেরেছো? তার জন্য মার্কিংটাকেও বেশি করেছি। অনেক সময় 25ও ধরে নিতে পারো একটা দিয়ে দিতে। স্যার বলছিলাম স্যার, জার্নাল লেজার আমাদের সিলেবাসে নেই তো? আরে অনেক সময় দিয়েও জার্নাল লেজার সাধারণত দেয়, জানা উচিত, এবার তো দেয় না তো। এবার বেসিক জিনিস অনেক সময় লেজার দিয়ে দেয়, তবে এইগুলো করবে দেখবে পেয়ে যাবে, মানে অল্টারনেট পেয়ে যাবে, ঠিক আছে তো? ওকে ওকে স্যার। হ্যাঁ, মানে জার্নাল লেজার দেখো, বেসিক জিনিস এখন শেখাতে গেলে আমাকে 4-5 অন্তত 10খানা ক্লাস লাগে। এটা বেসিক জিনিস, ওটা শেখাতে গেলে 10খানা ক্লাস মোটামুটি ভালো করে শেখাতে গেলে। আর যদি একটু খারাপ করেও শেখাই তাহলেও 4 থেকে 5টা 8 ঘন্টা তো লাগবেই, ধরুন মিনিমাম 8 আওয়ার্স জার্নাল ওকে লেজার স্যার, শেখাতে। ওকে। তো জার্নাল, তারপর লেজার আছে, তারপর ট্রায়াল ব্যালেন্স আছে। আমি লিটারালি স্টার্টই করেছি ট্রায়াল ব্যালেন্সের পর থেকে ব্যালেন্স শিট দিয়ে, ঠিক আছে তো? 3-4টে ক্লাস লেগে যাবে। পুরোটা যদি জার্নাল লেজার ট্রায়াল ব্যালেন্স করাতে যাই, তাহলে মোটামুটি তুমি ধরে রাখো 10-12 ঘন্টা লাগবে, ঠিক আছে? 10 ঘন্টা মানে 5টা ক্লাস, ঠিক আছে? তো এইগুলো আর বাদ বাকি যেটা 15 নম্বর করলে, ওটা হ্যালো কস্ট এন্ড কস্ট শিট 15 মার্কস করলে, অর্পণ হ্যালো। ইয়েস ইয়েস। আর বাদ বাকি 20 নম্বর ধরে নাও, ওই লাস্টে যে শর্ট নোট ফট নোট থাকে, থিওরি টিউরি করে থেকে দেবে, মিলিয়ে মিশিয়ে করে থেকে। ওই 4-5 নম্বরের 4টে করতে হয় না, 5 নম্বরের শর্ট নোট, ওখান থেকে ঘুরিয়ে দিয়ে দেয়। এই করে স্যার, বলো ওঙ্কার। স্যার পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং চ্যাপ্টারটা আছে? পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং তো নেই তোমাদের। আরেকটা ওই ইনফ্লেশন থেকেও কিছু কোশ্চেন থাকে না, পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং বলে, ইনফ্লেশন বলে থাকে। হ্যালো অর্পণ, ইনফ্লেশন আছে না, 5 দিন বলেছিলাম একদিন করিয়ে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, করিয়েছিলেন। ওইখান থেকে কোশ্চেন থাকে কিছু।
जैसे सेंसिटिविटी एंड रिस्क एनालिसिस এর উপর হ্যাঁ, ও সেনসিটিভিটি অ্যানালিসিস ক্লাসে করেছে, ওটা ক্যাপিটাল বাজেটিং এর মধ্যে ধরে নিতে পারো, পার্ট অফ ক্যাপিটাল। ওকে স্যার, ওকে স্যার। ওই Okay. সেনসিটিভ অ্যানালিসিসটাও ক্যাপিটাল বাজেটিং এরই পার্ট। পুরো তাহলে ওই এনপিভি, নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু, ওইটাই হ্যাঁ, নেট পেড ক্যাপিটাল বাজেটিং অনেক বড়। ওই ধরো তার মধ্যে পে ব্যাক পিরিয়ড, তারপর এনপিভি, ঠিক আছে? তো এগুলো সব ওই সেনসিটিভিটি অ্যানালিসিস, এগুলো সব ওই ক্যাপিটাল বাজেটিং চ্যাপ্টারের মধ্যেই আছে, ঠিক আছে? তো ওকে স্যার, ওকে। প্রেজেন্ট আউট নেট আউটটাকেই বলে, ফিউচার আউট প্রেজেন্ট আউটটাকেই বলে হচ্ছে কি এনপিভি, ঠিক আছে? তো এই পুরোটাই ক্যাপিটাল বাজেটিং চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে, ঠিক আছে? অনেক জায়গায় অনেক বইতে দেখবে আলাদা করেও দেখায়, আবার অনেক জায়গায় ক্যাপিটাল বাজেটিং, অনেক জায়গায় ফিউচার ভ্যালু প্রেজেন্ট ভ্যালু বলেও দেখায়, ঠিক আছে? তো ফিউচার ভ্যালু বলে অন্য একটা চ্যাপ্টার বানিয়ে রেখেছে, অনেকে আবার ক্যাপিটাল বাজেটিং হেডের মধ্যে ঢুকিয়ে, এই বইটাতে আলাদা করে চ্যাপ্টার দেয়। তো পুরোটাই এটা ক্যাপিটাল বাজেটিং ওয়াইডার সেন্সের মধ্যে আছে, বড় চ্যাপ্টার। হ্যাঁ, কে আমাকে কোশ্চেন করছিল রেকারিং আর নন হ্যাঁ স্যার, রেকারিং কস্ট। হ্যাঁ স্যার, একটু রেকারিং আর নন হ্যাঁ, রেকারিং। নিশ্চয়ই বলে দিচ্ছি। রেকারিং কস্ট মানে হচ্ছে কি, যেটা প্রত্যেক ধরো কিছু একটা इंटरवल ऑफ टाइम পরে পরে लगता है, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस আমাদের 28 डेज পর পর দিতে হয়। ইলেকট্রিসিটি বিল রিকারিং, মানে after a specified time span we have to pay that amount, recurring cost। তোমাদের সেমিস্টার ফিজ রিকারিং কস্ট, after every 6 months you have to pay a semester fee। but when you purchase a book, it is not a recurring cost, it is a fixed cost। when you purchase the machinery, it is a fixed cost, non-recurring cost rather you can say non-recurring, जो बार बार मेरे को नहीं लगता है, वन टाइम कर देंगे तो ही मेरा हो जाता है non-recurring cost। recurring cost जो बार बार लगता है, non-recurring cost जैसे पार्ट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है? जैसे आप लोगों का एडमिशन फी हो गया, वन टाइम ही लगता है, मेरे को लगता है एडमिशन फी, लाइब्रेरी फी, ये लोग ये सब होता है नॉन रिकरिंग कॉस्ट, एक बार ही देना, वन टाइम ही देना पड़ता है। मगर सेमिस्टर फीस, एग्जाम फीस, ये रिकरिंग है, हर 6 मंथ आफ्टर आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आया रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग कॉस्ट का अंदर? यस सर, यस। नॉन रिकरिंग कॉस्ट जनरली एसेट्स में आता है, नॉन रिकरिंग वाला, और रिकरिंग वाला कॉस्ट जनरली लिख कर रख सकते हैं। नॉन रिकरिंग कॉस्ट और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस generally comes in balance sheet under the head assets, in the asset side of balance sheet ऐसे लिख के रखिएगा सर। रिकरिंग कॉस्ट अंडर एसेट्स, नॉन रिकरिंग अंडर assets, ओके ओके। और रिकरिंग पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। रिकरिंग जो खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। Is it clear? Is it clear सबको? यस सर। यस सर। तो ये जो क्लास ये खत्म हो गया, आज का क्लास भी खत्म हो गया, पूरा आप लोगों का भी जो जितना भी क्लासेस था खत्म हो गया इकोनॉमिक्स का। तो थैंक यू एवरीबॉडी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना? आप लोगों का एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो थर्ड सेमेस्टर एग्जाम फरवरी से स्टार्ट होगा लगता है, डेट आ गया क्या? नो सर। सर सेकंड উইক মেবি। ওকে, তো সবাইকে বেস্ট অফ লাক জানাচ্ছি, ভালো করে পরীক্ষা দিও। যেগুলো বলেছি দেখো, অনেক এরকম টুকটাকও পাবে, সেগুলো অতটা স্ট্রেস দেওয়ার দরকার নেই। আমার যা বিশ্বাস, मेरे को जो बिलीव है, अगर जो कराया ये आप लोग ठीक करके कर सकता है, तो आउट ऑफ 70 40 से 50 40 से 60 का भी रेंज से आ सकता है। मिनिमम 40 मैक्सिमम 60 आ सकता है अगर ठीक से करिएगा तो। मैं विद रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकता हूं, जो चैप्टर कराया वो सब चैप्टर अगर ठीक से करते हैं तो आप लोगों को 40 से 60 का अंदर मार्क्स मिलेगा। मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बोल सकता हूँ, मगर ठीक से करना पड़ेगा। जिन सब वेराइटीज का सम कराया अगर ठीक से करेंगे तो विद इन 40 to 60 आपको मिलेगा। मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बोल रहा हूँ सर। हाँ
স্যার বলছি যে শর্ট নোটস গুলো দেওয়ার কথা বলছেন, যে শর্ট নোট গুলো যে দেবে স্যার, সেগুলো স্যার পয়েন্ট ওয়াইজ লেখা যেতে পারে নাকি প্যারাগ্রাফ ওয়াইজ লিখবো ওখানে পরীক্ষায়? দেখো পয়েন্ট ওয়াইজই লিখবে, ধরো একটা পয়েন্ট লিখলে নিয়ে তার মধ্যে দুটো লাইন লিখলে বা তিনটে লাইন লিখলে, আবার নাম্বার ওকে 2 ওকে পয়েন্ট লিখলে, দু তিনটে লাইন লিখলে, আবার নাম্বার 3 ওকে পয়েন্ট লিখলে, 3-4টে পয়েন্ট লিখলে, এরকম ভাবে লিখবে। ওকে স্যার ওকে খালি পয়েন্টে লিখে ছেড়ে দেবে না, ঠিক আছে? তো দু লাইন একটু ইলাস্ট্রেট করে দিলে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর যেহেতু এখানে ম্যাথস আছে না, প্রথমে ম্যাথস গুলো ট্রাই করার চেষ্টা করো, কেননা সাধারণত শর্ট নোট বা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনে অ্যাভারেজ মার্কিং হয়, পরিষ্কার ভাবে বলছি। দেখো স্ক্যান খাতা আছে, হাফ লেখা বোঝা যায়, হাফ লেখা বোঝা যায় না। এবারও খাতা চেক করতে গিয়ে ওই অন্য सेमेस्टर गुलो দেখেছি, आधा कॉपी तो समझ में आता है, आधा तो नहीं समझ में आता है हैंडराइटिंग। तो क्या होता है, जिसका समझ में आ रहा है तो मार्किंग अच्छा होता है, जिसका हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता है उसको एवरेज मार्किंग करते हैं। एवरेज मार्किंग मतलब आउट ऑफ 5 2 to 3, अच्छा लड़का 3 दे देते हैं। एवरेज मार्किंग पढ़ नॉट रीडेबल, ठीक से पढ़ नहीं पाते, तो उतना तो किसी के पास टाइम नहीं है, ऐसे जूम करके हर लाइन पढ़ेगा, देख लेगा भाई। हाँ हैंडराइटिंग अच्छा है, पढ़ सकता है 4 to 5, नहीं तो 3। तो अगर 4 क्वेश्चन कर लिए तो 12 मिलेगा, एक सम करते हैं, ठीक करते हैं, तो आउट ऑफ 5 करके रहता है, तो आउट ऑफ आपको 12 मिला। अगर सम ठीक से करेंगे तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं, 20 में 20 मिलेगा। समझ में आया? ये सब है मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत इजी है, वो ठीक से कीजिएगा, ठीक है? फिर मार्जिनल कॉस्टिंग इजी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी भी इजी है, कैपिटल बजटिंग जो बोल रहा हूँ वो भी इजी है, ठीक से कीजिएगा, मार्क्स अच्छा आता है, फुल मार्क्स देते हैं हम लोग, फुल मार्क्स देते हैं। आज भी एक तो पे बैक पीरियड का भी सम आया था इस 7th सेम में, मतलब 4th ईयर का पे बैक पीरियड का ऊपर सम आया था, 8-16 मार्क्स, नहीं 15, 8 और 7 मार्क्स का दोनों सम, इजी सम दिया था। कॉपी चेक करा तो बहुत स्टूडेंट को मैं 15 दिया हूँ, आउट ऑफ 15 ही दिया हूँ। ये कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है, पे बैक पीरियड का ऊपर सम आया था, 2 टॉपिक, एक ही टॉपिक का ऊपर 2 सम आया था। एक 8 मार्क्स टाइम कैलकुलेट करने के लिए देता, कितना दिन में पे बैक होगा और कितना अमाउंट, तो 15 मार्क्स मिला, बहुत स्टूडेंट को मिला 15, आउट ऑफ 15 ही दिया। तो इस सब में शॉर्ट नोट लास्ट में ट्राई कीजिएगा, ठीक है? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो। अच्छा, और एक बार एक चीज याद रखिएगा, जो मैं फेस किया हूं कॉपी चेक करने में, बहुत स्टूडेंट क्या करता है ना, जब जो फर्स्ट 10 मार्क्स का जो शॉर्ट आंसर आता है, अभी तो शॉर्ट आंसर एमसीक्यू को नाम चेंज कर दिया, शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स का आता है, स्टूडेंट लोग क्या करता है, पहले 2 नंबर का आंसर करता है, फिर चला जाता है 6 नंबर में, और फिर चला जाता है 3 नंबर में, फिर चला जाता है 12 में, फिर आता है 1 में। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, सिक्वेंशियली कीजिएगा, 1 2 3 4 करके लिख लीजिएगा, 2 मत लिखे है तो छोड़ दीजिएगा, 3 में आंसर लिखना तो 2 लाइन छोड़कर रखिए, लिखिएगा 3। और आपको कुछ क्वेश्चन डाउट लग रहा है, दोस्त से पूछना तो उसको ब्लैंक रख कर जाइएगा, बाद में आपको डाउट क्लियर करके लिख दीजिएगा प्लीज। तो ऐसा मत कीजिएगा, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होता है। अगर कॉपी चेक करने में एग्जामिनर को प्रॉब्लम होता तो ये याद रखिएगा कि मार्क्स आपको कम मिलेगा। एग्जामिनर को अगर कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होता है तो एग्जामिनर का नुकसान नहीं है, स्टूडेंट्स को मार्क्स कम मिलेगा, ये लॉस आपका होगा। तो वो जो शॉर्ट आंसर होगा ना, सीक्वेंशियली कीजिएगा प्लीज, तो आप लोगों का आंसर मार्क्स अच्छा मिलेगा, ठीक ठाक मार्क्स मिलेगा। नहीं तो एग्जामिनर पजल, इधर एक बार देखता है, इधर देखता है, ये क्वेश्चन का आंसर किधर लिखा है, वो क्या लिखा है, क्या होता है इसमें गलती हो जाता है। दे आर ऑल्सो एग्जामिन, जो कॉपी चेक करते वो लोग भी ना ह्यूमन बींग्स है, ठीक है? तो ये सब एक्सपीरियंस में कॉपी चेक करते हुए देखा हूं, तो आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। जब थ्योरी क्वेश्चन लिखेगा, हैंडराइटिंग मस्ट बी वेरी क्लियर, हैंडराइटिंग साफ होना चाहिए, ठीक है ना? अगर थ्योरी शॉर्ट नोट लिख रहा है तो 1 लाइन छोड़कर लिखिएगा, कोई बात नहीं है, 32 पेजेस रहता है, 12-13 पेज में ही आप लोगों को खत्म हो जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट का। तो वो एक थ्योरी जब लिखना है, नीट एंड क्लीन करिएगा, एक लाइन छोड़कर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कॉपी चेक करे उसको पढ़ने में सुविधा होगा। और किसी क्वेश्चन मत छोड़कर आइएगा प्लीज,
ये मेरा एडवाइस है, किसी क्वेश्चन मत छोड़कर आइएगा। मतलब 70 के मार्क्स का पेपर में 70 आंसर कीजिएगा। मे बी सम क्वेश्चंस आर रॉन्ग, आंसर करिएगा। 70 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स का ही आंसर कीजिएगा प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन कुछ मत छोड़िएगा, मे बी गलत, आंसर कीजिएगा। 70 मार्क्स का पेपर में 70 मार्क्स का ही आंसर होना चाहिए, कोई आंसर गलत हो सकता है, कीजिए आंसर 70 मार्क्स का। इज इट क्लियर? छोड़िएगा नहीं किसी का, यस सर। एक मार्क्स भी छोड़िएगा नहीं। ये क्लियरली मैं बोल रहा हूं, इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए। गलत है तब भी लिखिएगा, आपको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है आंसर गलत हो सकता है, मे बी, लिखिएगा, ठीक है ना। 70 मार्क्स का पेपर 70 मार्क्स से आंसर कीजिएगा, छोड़कर आइएगा नहीं। ट्राई कीजिएगा सम बनाने का, मार्क्स ज्यादा अच्छा आता है। जैसे बोला हूं वैसा पढ़िएगा तो 40 to 60 आपको मिल जाएगा। आउट ऑफ 70 40 to 60 मिल सकता है आपको, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। गुड नाइट, ठीक है। ओके सर।